nervous system is mainly stand for the control and coordination. And not only nervous system रे तीटा जिनस अछि गोटे न्यूरॉन अछि आ गोटे न्यूरोग्लिया cells अछि. Neuron itself cannot do this control and coordination. Along with the neuron, other cells. मैम कहीं किसी शोभुनी आउ Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, कहीं किसी शोभुनी Your voice is not audible, ma'am. मैडम किसी सुबह जाऊनी Actually ମୁଁ କିଛି କହୁନି connection ପଳେଇଲା start କରୁଛି. Sorry. आज्ञा आज्ञा हाँ ମୁଁ କିଛି କହି ନଥିଲି connection ପଳେଇଥିଲା. ओके स्टार्ट करवा नर्वस सिस्टम रे हम कहली न्यूरॉन सहित बहुत सारा कौन थाए ना सेल्स थाए न्यूरोग्लिया सेल्स तो सेडा कौन इंक्लूड करे स्वान सेल्स इंक्लूड करे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इंक्लूड करे एस्ट्रोसाइट्स एपेंडेमा माइक्रोग्लिया then what is the basic difference between swan cells and oligodendrocytes. Swan cells are the cells which is found in the PNS
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रो जो एक्सन्स थांती सेठी सेटा मिले and their function is that they are producing the myelin sheath and oligodendrocyte they are found in the CNS central nervous system में देखा जिवो and their function is also production of the myelin sheath or secretion of the myelin sheath both the swan cells और oligodendrocyte का function होची myelin sheath function माने produce करिबा but ताकर localization अलगा गोटे होची PNS रो अछि आ गोटे हमर कोठी अछि CNS रे next होची astrocytes. These astrocytes are mainly cover the capillaries of the brain or we can say that they form the blood brain barrier which regulate the passage of molecule. जदि तुम टाइट जंक्शन मन पकेब टाइट जंक्शन कौन करे गोटे बैरियर परिका काम करे जहाँ भी मॉलिक्यूल एंट्री करुथबो कि बाहर को थिबो सेटा कौन करे ना ता बाट देखि पास करे तो ये भी से काम करे ब्लड ब्रेन बैरियर बोले काम करे तो जहाँ भी मॉलिक्यूल्स पास करिया को थिबो ट्रांसपोर्ट करिया को थिबो ये ताको कौन करे ना रेगुलेट करे नेक्स्ट वन इज एपेंडेमा इज फाउंड इन द लाइन ऑफ वेंट्रिकल ऑफ सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल कैनल ले एटा अछि लोकलाइजेशन अछि आ ताको हेल्प करे तार फंक्शन करे माइक्रोग्लिया आर मोस्टली दे आर द फागोसाइटिक amoeboid cells of central nervous system phagocytosis means ना रो जरा पड़छि दे मेनली remove the damaged cell normal जो damaged cells थाते they are help in removing that one then what is the basic structure of neuron we know that the neuron is considered as the structural and functional unit of the nervous system the neuron ta tike kemti dekha je goto gachho parika jemti gachro so patra achi the dendrites are like that only dendrites are finger like projection normally they receive the message from other cells means other neuron cells next kon achi na jetik bi sab achi dendrite they are come together and find they are connected in a central space then that is where we call that as the cell body or cytoplasm or perichiron भी हम कहती तो से सेल बॉडी रा काम कोन जहाँ भी डेंड्राइट पाखरु मेसेज आस्तिबो से ताको कोन करे ना सपोर्ट सेंटर वाला काम करे ताको हेल्प करे पास करिया पई एक्सन को नेक्स्ट एक्सन कोडी अछि ना पूरा सेल बॉडी को लागि गोटे लंबा गोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अछि जोडा कि हमें एक्सन कहबा देन that helps in passaging the message away from the cell body to the axon terminal and along with that axon terminal or axon there is some myelin sheath are found myelin sheath माने देखिबा axon terminal ले cover हे कि छोटे round हे कि अछि brown color सेटा होची myelin sheath and one thing myelin sheath is not continuous it is discontinuous जो जगह myelin sheath नाही माने the axon which is divided of the myelin sheath we call that as the nodes of Ranvier and this presence of this myelin sheath help in the conduction of impulse in the case of myelinated nerves and what happens last one is a terminal branches of the axons or axon terminal तो हमें कहि परिबा जेतलो गोटे सेल जेमति कम्युनिकेशन करथि यदि देखिथिबा हमें कोन करथि सेल कम्युनिकेशन द्वारा हेटेरोकाइन हला ऑटोक्राइन हला सेमतिका तो सेमति नर्व इंपल्स माने नर्व सेल्स माने केमति कम्युनिकेट करथि गोटे नर्व सेल्स रहइबो आ गोटे नर्व सेल्स रहइबो माने गोटे नर्व सेल डेंड्राइट सहित आ गोटे नर्व सेल ता पाखरे कोन थिबो आ गोटे नर्व सेल एक्सन थिबो जेमति के लाइन करके जदि हमें रखिबा सेमति गोटे डेंड्राइट then axon then गोटे कोन हबो axon terminal गोटे नर्व सेल जोठी गोटे सेल axon terminal सर थिबो सेठी आ गोटे सेल रो कोन हिथिबो डेंड्राइट स्टार्ट हिथिबो then हमें कहि परिबा कि the space but the functional relationship between the two nervous system that is also synapse help in passing the messages from one nervous cell to another nerve cell बा गोटे न्यूरॉन नो आ गोटे न्यूरॉन को पास करिया पई बा जो इंटरेक्शन करिया पई जो स्पेस ता थाए बा ताका भीतर जो कहि परिबा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन भीतर जो गैप ता थिबो सेटा हेल्प करे पास करिया पई कि जहां भी हम पाखरे इंपल्स आस्तिबो नेक्स्ट देखो गोटे फिगर 6.2 रे गोटे बॉक्स अछि से बॉक्स रे कोन देछि कि हमें पढिथिले जोटा कि ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल्स बोथ द ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड स्वान सेल द फंक्शन सेम कि दे आर प्रोड्यूसिंग द myelin sheath but their localization is their location is different means the swan cells location is present in the case of PNS and the oligodendrocyte location is found in the case of CNS and besides this, what are the other differentiations in between the myelin sheath found in the case of PNS
PNS and myelin sheath found in the case of CNS. Myelinated neurons, which is found in the case of PNS, mainly they are originated from the Schwann cells, and Schwann cells को आउ भी कौन कहते हैं ना न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहा जाए. And the nodes of Ranvier means the gap in between that myelin sheath is more in the PNS as compared to the CNS. जदि गोटे आमे myelin sheath PNS रू नौचंती myelinated nerve आ गोटे नौचंती CNS रू, then nodes of Ranvier PNS रे अधिक आसीबो as compared to CNS. And another thing that, and the Schwann cells only myelinated only one axon in the nerve in the case of PNS. माने जति हम गोटे Schwann cell नौचंती से केवल गोटे ही axon को myelinated कर परिबो, कारण सेटा सिंगल थाए, ब्रांचिंग न थाए. बट इन द केस ऑफ oligodendrocytes they are branched माने कोन थिबो ना तर गोटे ब्रांच कोन करबो ना गोटे axon को myelinated करथबो, आ गोटे ब्रांच आ गोटे axon को myelinated कर परथबो. तर या माने कि सिंगल टाइम रे मल्टीपल axons कोन होतबे myelinated हे होतबे. किंतु हमको कौन करिया पड़िबो जदि हमें PNS कथा देखिबा, किंतु मल्टीपल हमको Schwann सेल दरकार, हमको मोर देन वन एक्सन को माइलिनेटेड करबा पयकी. देन जेंति हम PNS रा काम कोन, दे विल कैरी सिग्नल्स इन द टू द मसल्स, ग्लैंड्स, सेंसरी ऑर्गन एंड स्किन. एंड इन द केस ऑफ CNS रा जो माइलिनेटेड नर्व्स अछंती, दे मेनली सेंड द इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम वन सेल बॉडी टू अनदर. And in the case of myelinated nerves, in the case of PNS, they are having the neurolemma. Neurolemma kono na, they are outer covering of the myelinated region, जोटा कि PNS रे अछि. But this neurolemma is absent in the case of CNS. माने myelin सेटा covering नथिबो in the case of myelinated nerves, in the case of central nervous system. Everything is clear about this neuroglia. Next move towards the action potential or nerve impulse. এটা बहुत इंपोर्टेंट अछि, भलसे मन देके सुनबो. तो नर्व इम्पल्स पढ़िया पूर्व आम टिके डिस्कशन करबा कि पढ़िथिबो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट केमती होची. तो नॉर्मली जदि हम देखिबा पैसिव ट्रांसपोर्ट केते बळे हबो ना, जते बळे हाई कोन हबो ना, हायर कंसंट्रेशन को लोअर कंसंट्रेशन किछि बे आयन को हमको मूव करियर अछि, से केस रे कोन होय ना, हमरो पैसिव ट्रांसपोर्ट दरकार कि हमको बिना एनर्जी रे विदाउट द यूज ऑफ एटीपी द आयन्स विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. बट इन द केस ऑफ active transport, what happens in the case of active transport, opposite habo, with the use of energy, that is in the form of ATP, the ions will move from its lower concentration to the higher concentration. तो आमे जेमति जानि चंती बहुत सारा ट्रांसपोर्टर दरकार मूव करिया पे. इन द केस ऑफ जदि हम कहचंती पैसिव ट्रांसपोर्ट, ताले हम सब जानि चंती कोन कोन अछि, कैरियर प्रोटीन्स अछंती, वोल्टेज गेटेड चैनल्स अछंती बा गेटेड चैनल्स अछंती. तो गेटेड चैनल्स केते प्रकार अछंती, गोटे बॉक्स देछि देखो 6.3. Gated channel माने कोन ना, gated channel means they will open and close by bringing some molecule at certain events. जदि सेटा गोटे ligand gated channel होची, ligand gated माने कोन, the ligand will bound to the extracellular, माने गोटे ट्रांसपोर्टर अछि, एक्स्ट्रासेलुलर रे गोटे ligand बाइंड करबो, ligand बाइंड करले जद से कोन करबो ना, से जो जहां भी तमरो ligand gated channel थिबो, जेंति Na+ ligand gated channel हो कि K+ ligand gated channel हो, सेटा ओपन हबो. ओपन होला परे तमरो जो आयनटा हाई कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन मूव करिया था, सेटा मूव करि जिवो. Next देखो voltage gated channel. Voltage gated channel माने कोन, all the voltage gated channels having specific electric potential. ligand कोन Means ligand means it is a molecule which will act as a activation for the transporter. तो हमें जदि माने पकेइबो ट्रांसपोर्टर जदि सेल सिग्नलिंग पड़िथिबो, सेल सिग्नलिंग रे जदि हम कोन सुटा ट्रांसपोर्टर को एक्टिव करबार अछि, तो हमको डिफरेंट वे रे हम एक्टिव करे परिबा. GPCR पड़िथिबो, GPCR जेमति कोन होला, GPCR इज द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टर माने सॉरी ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर. तो GPCR को एक्टिव करबा पय कि हमको डिफरेंट टाइप रो कोन दरकार, लिगैंड दरकार. जेमति एसिटिल कोलिन हे परिबो, गोटे लिगैंड परिका काम करि परिबो, रोडोस्पिन हे परिबो, गोटे लिगैंड परिका काम करबो. आमे आगु को गले देखिबा थर्ड यूनिट रे अछि लिगैंड गेटेड चैनल कोन कि माने केमिति लिगैंड कोन, लिगैंड होची जे कि गोटे जिंस जे कि एक्टिव करोची गोटे ट्रांसपोर्टर को, सी एक्टिव करले तमरा आयन्स रो मूवमेंट हबो. बुझबेला. देन होची वोल्टेज गेटेड चैनल. वोल्टेज गेटेड चैनल्स गुडा को जति अछनी, दे आर वेरी स्पेसिफिक, माने जति के वोल्टेज गेटेड चैनल थिबो, माने कर Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल हला, K+ वोल्टेज गेटेड चैनल हला, दे आर वेरी स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज. तो वोल्टेज रे कोन हो, जति सेति के वोल्टेज हला देन से ओपन हेबे कि सेति वोल्टेज हला से क्लोज हेबे, डिपेंड करबो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केते अछि तमरा सेल रे. नेक्स्ट होची मैकेनिकल गेटेड
चैनल मेकानिकल गेटेड चैनल होची कोनसे गोटे मेकानिकली ट्रांसपोर्ट होतो जेमति हम ईयर रे अछि ईयर रे कोन में साउंड हला किबा टेम्परेचर के जेमति साउंड ता एक्ट करबो गोटे मेकानिकल गेटेड चैनल्स अछि हम ईयर रे जोटा कि हेल्प करे मूवमेंट ऑफ द हेयर सेल्स जोथि हम सुनि पारचंती तो सेठी कोन हबा ना कोनसे फिजिकल डिस्टोर्शन हबो जेमति कि टेम्परेचर चेंज हला टच हला किबा साउंड रे किछि वाइब्रेशन हला दैट विल एक्ट एज ए signal for the opening of the mechanical gated channels. Then leaky or random gated channels माने they will open and close randomly and has inbuilt feature that ସେମାନେ कोन inbuilt feature already अछि कि ସେମାନେ switch on होई परिबे switch off होई परिबे according to their level सेटा autonomously sorry सेटा voluntary नुए involuntary ସେମାନେ निज काम कर परिबे. नेक्स्ट होची आमे कहबा कि एक जति के हमें पढिले एरा सब होची पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट माने कोन हायर कंसंट्रेशन रो लोअर कंसंट्रेशन मूव करची जो जहार यूज हमें एबे देखिबा नर्व कंडक्शन टाइम रे. नेक्स्ट अछि तमरो वोल्टेज गेटेड चैनल Na+ K+ पंप ATPH Na+ K+ ATPS एटा गोटे प्रकार एग्जांपल होची तमरो एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस इट विल मूव द आयंस फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन विथ द यूज ऑफ ATP. तो एतिके आइडिया मिल गला कि को चैनल को पट को मूव करबो आ केमिति मूव करबो कोन पई मूव करबो. नेक्स्ट हमें देखिबा कि आम बॉडी रे जे हम पढ़ले कि दी प्रकार न्यूरॉन अछि गोटे माइलिनेटेड नर्व फाइबर आ गोटे अछि नॉन माइलिनेटेड. फर्स्ट हमें पढ़िबा कि हाउ द इम्पल्स कंडक्टेड इन द नॉन माइलिनेटेड नर्व जदि गोटे माइलिन शीथ नाही देन केमिति नर्व कंडक्शन होची. तो नर्व कंडक्शन पई कि फर्स्ट हमको बुझा पड़ेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज डेवलप ओनली व्हेन देयर इज ए डिफरेंस इन द वोल्टेज माने हम सेल रे जदि हमरा कोनसी चार्ज रे डिफरेंस हला देन सेठी कोन होबो ना वोल्टेज किबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होबो ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द चार्ज. जदि हम गोटे सेल नउचंती सेल रो इंट्रासेलुलर बा सेल भितर जो अछि ता भितर हमर कोन थाय ना Na+ रो कंसंट्रेशन कम थाय K+ रो कंसंट्रेशन अधिक थाय. एटा मन रखिबो कि सेल भितर Na+ रो कंसंट्रेशन हमर कम थाय आ K+ रो कंसंट्रेशन अधिक थाय. ऑपोजिट होची एक्स्ट्रा सेलुलर कोन थिबो Na+ रो कंसंट्रेशन अधिक अछि K+ रो कंसंट्रेशन कम. ताले ए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अछि डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अछि ए डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पै कि कोन अछि ना हमर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टा क्रिएट होची. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होची ड्यू टू द चार्ज डिफरेंस इन बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द साइटोप्लाज्म रे जहां भी तमरो आयंस अछि तांको भितर डिफरेंस पै कि बा तांकर डिस्ट्रीब्यूशन रे डिफरेंस पै कि हमर एठी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होची बा वोल्टेज क्रिएट होची जहां थ्रू रे हमर कोन होची ना नर्व टा बा कंडक्शन करि परची बा इम्पल्स आगो को पास कर पारछि. देन आमे जदि देखिबा नर्व कंडक्शन ना फर्स्ट फेज होची पोलराइजेशन माने कोन पोलराइजेशन मींस इट विल मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मींस इट विल नॉट कंडक्ट एनी टाइप ऑफ इम्पल्स. इट डज मींस कोन से भी इम्पल्स कंडक्ट हबनी not mean that the cells are not working. Say time re kon hobo kebol impulse conduct honi but the cells are maintaining the excitability mane kon the cells are not totally rest. Nerve cells generate electric charge for the conduction of an impulse in response to the stimulus. Man tanga पाखरे सेति के पावर अछि गोटे impulse आसले से आगो को पास कर परिबे किंतु निजे जनरेट करके सेटा पास कर परिबेनी. तो एबे कोन होची रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ले गोटे आमर गोटे होची ए फिगर देखिबो जदी 6.4 रा फर्स्ट फिगर ता देखो इट -70 MB रो मेंटेन हुए. पोलराइजेशन टाइम रे आमर जो सेल अछि ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस तो भितरे कोन हुए ना नेगेटिव चार्ज मेंटेन हुए बाहर पॉजिटिव थाए. नेगेटिव केते थाए -70 टिपिकल वैल्यू होची -70 MB रो मिली वोल्ट रो वोल्टेज मेंटेन हुए भितरे और बाहर कोन हुए ना पॉजिटिव थाए. या माने नो कि टोटल सेल नेगेटिव. इट मींस दैट नेगेटिव साइन डिनोट here is that the inside the cell is negative as compared to the outside cell comparison ने भीतर जो सेल टा अछि सेल जो आयंस अछि से माने बेसी नेगेटिव आयन अछंती. तले ए नेगेटिव आयन जो रहू छी हमें बे देखि देले ना तमन को मतलब डाउट आस्तबो कि मैडम एटा तो Na+ अछि K+ अछि ऊपर तो Na+ और K+ रो माने कोन आयंस रो क्वांटिटी अलग ही पारे बट प्लस चार्ज अछि ताहले एटी नेगेटिव मेंटेन केमिति होची नेगेटिव एनवायरनमेंट पे नेगेटिव एमवी मेंटेन केमिति होची जो पोलराइजेशन स्टेट अछि ताको मेंटेन करे तीनटा फैक्टर स्पेशली. फर्स्ट फैक्टर होची अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस जोटा कि Na+ और K+ आ जदि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हैला एटी कोटे जिंस एक्टिव हुए दैट इज K+ लीकी चैनल रैंडमली ओपन हबो एटी
सेटा कौन करे ना लिकी चैनल कौन करिवो गोटे पैसिव ट्रांसपोर्ट मु कहितली पैसिव ट्रांसपोर्ट माने कोन हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन मूव हबो कोन आयंस गुडाक ताले मते को जदी लिकी चैनलटा प्रेजेंट अछि हमर सेल मेम्ब्रेन रे आयंस के मूव हेबे जोटी हायर कंसंट्रेशन थिबो K+ लिकी चैनल ताले K+ कोठी अधिका अछि K+ हमर भीतर अधिका अछि देन K+ विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बुझिपाल ऑलरेडी Na+ कम अछि भितरे बाहर Na+ अधिका अछि K+ हम पाखर अधिका थिला देन K+ एबे स्टार्ट कलानी मूव करिया भीतर बाहर को काहे कि नाटी K+ लिकी चैनल ओपन हेछि K+ लिकी चैनल काम होछि से कोन करबा पैसिव ट्रांसपोर्ट मूव करबा हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन मूव करबा सो द आयंस विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड माने K+ बाहर को जिबा मूव करबा ताले गोटे नेगेटिव फैक्टर हमको मिलला कि जेहेतु पॉजिटिव चार्ज बाहर को चली जाउछि नेगेटिव गोटे तो इंपैक्ट पड़िबो तापरे गोटे जिंस पय कि नेगेटिव एमवी मेंटेन होछि ता छोड़ा गोटे सेल अछि गोटे सेल माने कोन सेठी डिफरेंट टाइप मेटाबॉलिक पाथवे मेंटेन होतबो तो डिफरेंट टाइप मेटाबॉलिक पाथवे मेंटेन हेले तार प्रोडक्ट गुडा सेट रहउतबो जेमति तमे जानिथिबो पाइरुवेट हेला लैक्टेट हेला एसिटेट हेला these are the large dominant anions which are byproduct of different type of metabolic pathway एटा सब ATP amino acids सबुडा पॉजिटिव amino acids न थाए कि सबुडा न्यूट्रल न थाए किछटा नेगेटिव amino acids भी थाए so due to this ATP and large anions and the amino acids which cause the inside the cells more negative ଆଉ एमाने तम भाबुथबो कि K+ सहित एमाने काहे कि पळेलेनी कारण हमें जानचंती प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल से सब जिंस को बाहर को नहीं पारिबनी दैट ओनली अलाउ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड आ जहां भी एक्स्ट्रा बड़ मॉलिक्यूल मूव करिया हबो आ सेटा को सेति पेंगी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर दरकार आ जदी प्लस चार्ज अछि आ बड़ भी अछि साइज देन that is impossible to move from one side to another side जदी साइज बड़ आ चार्ज आसी जाउची देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो एटी कोन हला K+ बाहर को पळैला भितरे जहा सब डोमिनेंट एनायंस थिला बा नेगेटिव चार्ज जो बड़ बड़ थिला से सब रहि गला तले एटा भी गोटे इंपैक्ट पकोची नेगेटिव चार्ज भितरे मेंटेन करबा पय की ता छोडा आ गोटे कोन इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ Na+ K+ ATPase इलेक्ट्रोजेनिक नेचर मींस से कोन करे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे Na+ K+ ATPase इज ए which type of transporter it is active transporter means it will move the ions from its lower concentration to higher concentration just see in a cell we are having very less number of Na+ inside the cell and having K+ more K+ ions and the K+ are moving outside due to this opening of the leaky channel and already K+ move करछि माने भीतर नेगेटिव चार्ज बढ़ी जाउछि आ ता छडा भी जो बड़ बड़ एनायंस माने हेले से माने भी नेगेटिव चार्ज दोचंती देन कोन हेलानी एटी इलेक्ट्रोजेनिक इफेक्ट बा हमरो जोटा Na+ K+ ATPase अछि सेटा भी एक्टिव हे गलान सेटा एक्टिव हेले से कोन करबो ना स्टार्ट करबो मूव करबा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जदी भाबो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने Na+ K+ ATPase एक्टिव होउची ताने हमरो K+ कम कोठी अछि बाहर K+ कम अछि आ Na+ कोठी कम अछि भीतर Na+ कम अछि जहा तक K+ बाहर को जाइथिला जहा कम कम दीटा थिला एबे कोन हेलानी जो कम Na+ भी थिला they also start moving to outside due to the activation of that Na+ K+ ATPase why because the Na+ K+ ATPase will move the lower concentration जो भी ions थिबो ताको higher concentration को move करिवो Na+ ର concentration inside कोन अछि low अछि so Na+ will move outside and K+ will move inside but the distribution of Na+ and K+ is not equal that will move 3 Na+ to outside and 2 K+ inside and this due to this algal माने due to different type of movement unequal movement of ions it also impact the negative charge in the inside the cell and these three factor majorly cause the negative charge जदि एमती बेरे बेरे मल्टीपल चॉइस रास्ते कि which factors are responsible for the maintaining the polarization or resting state in a neuron system तमे जानछो तीन चारटा किंतु सबुटो बेसी इंपैक्ट पकाय लिकी चैनल टा कोन होय ना कंटीन्यूअसली से कोन करथे ना K+ को मूव कर चलथे ड्यू टू दैट वन बेसी जदि हम कहबा 100% हबो तने K+ टा जो K+ लिकी चैनल ओपनिंग टाइम बेसी हुए तो स्पेसिफिकली नेगेटिव जो इंपैक्ट टा पड़ुची बा नेगेटिविटी जो मेंटेन होची ड्यू टू दैट नेगेटिव due to that opening of K+ channel everyone understood this one how the resting membrane potential
develop or have the resting membrane potential maintain in the inside the cell. Then कौन हबो एटा होची normal state cell किछ काम करनी cell पाखो किछि भी impulse आसेनी एतिकी maintain हेची भीतर negative -70 MV बाहर हमर positive. Next कौन हबो ना depolarization हबो. Depolarization means what? One action potential will come. One action potential will come in that time when an impulse will come. Impulse jaha action potential seya आमे कहि परबा कि it is a rapidly occurring event that decrease or reverse the membrane potential. Membrane potential am पाखरे -70 MV अछि. It will decrease. Decrease means it will go towards less negative. Means if it is having -70, it will decrease to -60, then -15, -40, -30 like that. It will decrease to 0, then 0 to positive. Depolarization means it will change the membrane potential into positive. Means +40 or +30 कर दबा एटा. +40 हे गले डिपोलराइजेशन हबो. ऑब्वियसली जदि हमको +40 करूची तारे एंट्री कहा को भी गोटे कोन हबो प्लस आयन हबा दरकार कारण एजे तो हमर सब नेगेटिव आयन एंट्री कर सॉरी जहां भी पॉजिटिव आयन थिला सेटा बाहर को पळे जाउतला किंबा जो बड़ बड़ डोमिनेंट एनायंस गुडा थिला सेटा सब रहउतला सेथि पे हमर नेगेटिविटी मेंटेन होतला एबे कोन हेला ना पॉजिटिव हो पे हमु किछटा कोन होबो ना पॉजिटिव आयंस ता भीतर आसिया दरकार. सो हियर Na+ voltage gated channel open. Na+ voltage gated channel is a type of which type of channel? It is a passive transport. Passive transport means it will move the ions from its higher concentration to lower concentration. Before entering into that, just remember Na+ voltage gated channel जितकी भी तुम्हारे voltage gated channels अच्छी ताका पाखे दीटा गेट थाए. One is your activation gate, another is your inactivation gate. Activation gate is voltage dependent. कहती जितकी सब वोल्टेज गेटेड चैनल्स अच्छी से माने सब स्पेसिफिक थिबे गोटे वोल्टेज को तो से माने वोल्टेज गेटेड डिपेंडेंट आउ इनएक्टिवेशन गेट होची टाइम स्पेसिफिक माने से तांकर गोटे टाइम थिबो से टाइम पर से माने आपे आपे बंद हे जबे एठी गोटे जो पोलराइजेशन स्टेट रे एठी भी Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल थाए किंतु ए टाइम रे कोन थाए ना एक्टिवेशन गेट ता बंद थाए ओनली द इनएक्टिवेशन गेट बा आई गेट ता ओपन थाए जदी हमें कहिबा इनएक्टिवेशन गेट और एक्टिवेशन गेट केमतिका जदी तमे रिमेंबर करबो एमती देखो just here if it is your Na+ voltage gated channel and this portion is your activation gate and this lower portion is your inactivation gate means in the resting phase what happens in the resting phase it will be like this means the inactivation gate is open but the activation gate is closed. Sorry, the inactivation gate is so the inactivation gate is open and the activation gate is closed like this means resting state रे एमिति का थिबो inactivation gate टाइम तो open थिबो और activation gate टा close थिबो जेतो activation gate close अछि किछ भी आयन भीतर को आस परिबनी कारण inactivation gate खोली थिले कोन हबो फास्ट टाइम ओपन माने बंद अछि बट इन द केस ऑफ depolarization कोन हबो এই যে অ্যাক্টিভেশন গেটটা বন্ধ ଥିଲା এটা খোলি ଯିବ অলরেডি আমার ইনঅ্যাক্টিভেশন গেট বন্ধ খোলি মানে খোলা ଥିଲା অ্যাক্টিভেশন গেটটা ବି খোলি ଯିବ যদি অ্যাক্টিভেশন গেট খোলি ଯିବ Na+ ভোল্টেজ গেটেড চ্যানেল হচ্ছে গোটা প্রকার প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট মানে সে কোন করব হায়ার কনসেন্ট্রেশন ও লোয়ার কনসেন্ট্রেশন হবো আমার এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স র অধিক আছে কোন আমার এক্সট্রা সেলুলার ম্যাট্রিক্স অধিক আছে Na+ তো Na+ will start move from outside to inside বুঝি পারলা then what happen the Na+ will start move from outside to inside then कोन हबो ना Na+ रो कंसंट्रेशन भीतर बढ़िया को लागो माने पॉजिटिव चार्ज भीतर बढ़िबो पॉजिटिव चार्ज भीतर बढ़ले धीरे धीरे -70 then -60 then एमती हे कि पॉजिटिव आड़ को आसीबो आ गोटे कथा मन रखो -70 रु जदी मनकर गोटे इंपल्स आसिला से -70 रु बढ़े कि जदी -55 जाय न आसी जदी हम इंपल्स सेति स्ट्रांग नुए जदी से बेसी टाइम जाय कोन करची एक्टिवेशन गेट को ओपन करि पारुनी जदी 55 न होची देन से इंपल्स किछि फरक पकेबनी आगु जाई देखिबा कोन हबो से पुन थरे रिजल्ट हे जो बा सेटा हमको सेही जो इंपल्स टा आस्तिबा आगु को पास हबनी जदि से थरे -55 क्रॉस करछि हमें कहि परबा -55 इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस कला थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस करके 0 को जीवो देन 0 पर से कोन आसीबो पॉजिटिव हेला तमर +40 सेही टाइम रे कोन हेतिबो ना वोल्टेज गेटेड चैनल टा ओपन थिबो आ हमर कोन हबो डीपोलराइजेशन हबो माने इंपल्स एबे हमर जो एक्टिवेशन गेट टा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा थिला -70 रु एबे हे जायछि +40 and also second phase third phase is repolarization means what eta तुम देखि परबो
Yeah, repolarization means once again repolarization means that is maintaining the resting state. Resting state is -70. Again हमको केते maintain करिया कोची -70. एबे आमे अछंती कोची 44 plus 44 plus 40 रे अछंती. तले एबे हमको कोन करे अछि ना +40 रो पुनी 0 आसीबार अछि. 0 रो पुनी -55 -55 रो पुनी थरे -70. तो एई जो मेंटेन करिया केले हमको पुनी थरे कोन करिया अछि जो पॉजिटिव चार्ज गुडा भीतर थिबा ताको बाहर करिवार अछि. देन जे कि हमर रेस्टिंग माने पुनी थरे repolarization for maintaining that one, here your K plus voltage gated channel gets open. K plus voltage gated, just remember first one resting membrane resting state thila seti K plus leaky channel thila. एटी कोन हैला K plus voltage gated channel. K plus voltage gated channel open केते बळबो जेतळे plus 40 MV रे पहुंची जिवो. Depolarization हबो plus 40 MV रे पहुंची गला माने सेटा गोटे सिग्नल दबो बा सेटा जो plus 40 MV will act as a specific electric voltage for the K plus voltage gated channel. Then कोन हबो हमरा K plus voltage gated channel open हे जिवो. K plus voltage gated channel open हे गेले से कोन करबो? It will move the ions from its higher concentration to the lower concentration. Obviously amar bhitar hi adhika higher concentration na K plus achi. Then K plus will start move from inside to outside. धीरे धीरे amar kon haba K plus bahar jibo. जेतो धीरे धीरे K plus bahar जाउची पुनी थरे kon haba plus 40 जो थिबो धीरे धीरे नेगेटिव हबो. भाबुतबो जो Na plus voltage gated channel अछि सेटा तो ओपन अछि. Na plus भी आस्तबो ना जो कहिथिले I gate थिला जोटा कि कोन हेतिला resting membrane state रे on थिला बा जो inactivation gate of Na plus voltage gated channel सेटा कोठी on थिला resting membrane potential on थिला depolarization on थिला किंतु सेटा repolarization हबो inactivation gate ता बंद हे जबो ऊपर जो ऊपर पटर जो एक्टिवेशन गेट अछि सेटा खुला थिबो किंतु इनएक्टिवेशन गेट ता बंद हे जो एंड दैट विल इनहिबिट द एंट्री ऑफ Na plus फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. गोटे तो प्लस चार्ज आस्तला ताको बंद हे गेला गोटे पटे Na plus एंट्री बंद हैला एपटे प्लस चार्ज कोन कला K plus प्लस चार्ज ता मूव करिया स्टार्ट कला इनसाइड टू आउटसाइड एंड दिस विल मेंटेन योर membrane potential from plus 40 MV रो धीरे धीरे -70 MV जा नै आसीबो. तो एटा होची हमर कोन repolarization माने आउथरे polarization हे गला. Then what is hyperpolarization? Hyper means highest. देखंती जेति कि हबा कथा ताटु तो अधिक आइ जिवो. Hyperpolarization जदी -70 MV परे जदी आउरी बेसी कोन करबो बेसी नेगेटिव हे जिवो means -90 MV जा पळेबो then we will call it as the hyperpolarization. Hyperpolarization कोन पय हुए ना due to the delay in closing of K plus voltage gated channel, not opening of the K plus voltage gated channel. Opening of the K plus voltage gated channel will bring the repolarization, but delay in closing of the K plus voltage gated channel कोन हबो ना तमरा hyperpolarization. से बेसिक K plus टा को कोन करबो ना रिमूव कर देबो inside to outside, due to which the membrane potential will be more negative, that is from -72 it will comes as the -90 MV. This is known as hyperpolarization. In this way, the impulse will pass from one neuron cell to another neuron cell. Then another term is that refractory period. What do you mean by refractory period? Refractory period is that we can say that time required by the neuron for repolarization. माने गोटे repolarization पर आउ थरे repolarization हवा भीतर जति के गैप अछि हमें ताको refractory period कहि परिबा. And there are two type of refractory period. One is an absolute refractory period and another one is a relative refractory period. Absolute refractory period means even if you are giving any strong stimulus or strong impulse, the neuron will not accept that one, because the say state rate neuron is present at the period of Na plus voltage gated channel activation and inactivation of the voltage gated channel. माने को जगह अछि हमर depolarization state रे धर गोटे state अछि माने फर्स्ट जो neuron ता माने impulse ता आसीतिला सेटा बे कोन करछि depolarization करूची. से टाइम रे तमे आउटे स्ट्रांग इंपल्स दोचो. से टाइम रे जदि हमें गोटे जत्ते भी स्ट्रांग इंपल्स दबा से आउ थरे कोन करबो इंपल्स ता को एक्सेप्ट करि परिबनी, कारण से ऑलरेडी डीपोलराइजेशन स्टेट रे अछि. जदि लास्ट आड़ को जाइथांता जदि रिपोलराइजेशन आड़ को जाइथांता देन से आउ थरे कोन हेतांता रिपोलराइजेशन परे आउ थरे कोन हेतांता हाइपरपोलराइजेशन न जायकी डीपोलराइजेशन हेतांता. किंतु जेहेतु से बे कोड अछि डीपोलराइजेशन रे अछि, that will reject that impulse even if you are giving any strong impulse. Another type of refractory period is your relative refractory period. Relative refractory period means if you are giving any strong impulse, जदि हम गोटे जति फर्स्ट जति इंपल्स देथिले ताको गोटे स्ट्रांग इंपल्स दोचंती, then that will the accepted by the neuron. Why? Because at that state
if at that state what happens, the first impulse is in the state of repolarization. Repolarization अछि माने को जगह थिबो k plus voltage गेट चैनल ऑलरेडी ओपन हेछि, तुमको -70 ऑलरेडी मेंटेन हेलानी, -70 एमपी मेंटेन हेछि, तुम सेई टाइम रे आउ थरे कोन करछो ना गोटे स्ट्रांग इंपल्स दोछो, देन से स्ट्रांग इंपल्स पेंगे से आउ थरे कोन अब डिपोलराइजेशन हेजिबो। बुझि पाइलो, एटी गोटे ग्राफ अछि देखो 6.8 रे जदि हम देखिबा x एक्सिस रे कोन अछि टाइम, mx y एक्सिस रे कोन अछि mv बा मिली वोल्ट जोटा कि वोल्टेज। जदि हम देखिबा -70 रे देखो गोटे पैरेलल लाइन अछि x एक्सिस सहित, या माने कोन एटी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कोन अछि मेंटेन होछि, मीन दिस इज योर पोलराइजेशन स्टेट एंड दिस कम्स ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ k प्लस लिकी चैनल। ता छोटा अलगा भी अछि बट मेनली k प्लस लिकी चैनल। तापर हमें कोन होला ना इंपल्स देचंती, इंपल्स माने कोन गोटे स्ट्रांग गोटे एक्शन पोटेंशियल आसला, एक्शन पोटेंशियल आसला माने कोन होला ना धीरे धीरे देखो एक्शन पोटेंशियल जो हमर जो इंपल्स टा ऊपर को उठेची कोड को -55 देखो 55 इज योर थ्रेशोल्ड वैल्यू। जदी 55 को से क्रॉस करची देन से ऊपर को जाई परबो, जदी 55 क्रॉस करनी से ड्रॉप हे जिवो। से 55 क्रॉस कर देला देन कोन हो धीरे धीरे 0 पर डिपोलराइजेशन एंड दिस डिपोलराइजेशन स्टेट इज अकर्स ड्यू टू द Na plus voltage gated channel opening, especially your activation gate of Na plus voltage gated channels gets open here and then see the peak of that action potential. Peak mean जदि आमे कहबा पूरा जोटे 40 अछि ताने से पीक रे कोन होतबो, ए पीक रे कोन होछि ना हमर k plus voltage gated channel open होछि। जन जन भाबुथबो कि काहे कि जगह रे Na plus voltage gated channel कोन पाइनो, एटा तो पॉजिटिव एटा डिपोलराइजेशन। जदि ए जगह रे Na plus voltage gated channel ओपन हे माने ओपन हे कि रहि तांता ताले हमहु ए पीक आस न थांता, से तो कंटीन्यूअसली आउर ऊपर को बढ़ी जाई थांता ना, +40 रु +50 हे थांता। किंतु ए जगह जे तो ड्रॉप करूची ताले कोन होची से पॉजिटिव ता जाई कि गोटे नेगेटिव आसीची सेति पे ड्रॉप करची। नेगेटिव आणुची भी नेगेटिविटी कि आणुची k plus voltage gated channel, ताहले पीक पोजीशन में की ओपन होची k plus voltage gated channel बा एउटो रिपोलराइजेशन स्टार्ट होची। देन देखो धीरे धीरे कोन होची थ्रेशोल्ड आछी -55 तापर आउ थरे कोन होची ना जदि हमरो k plus voltage gated channel ठीक टाइम रे क्लोज नेला देन से कोन होची ना आउ थरे बेसी बेसी k plus टा को बाहर को दे दोची, सेति पे कि कोन होची ना -70 बदल रे से पुणे आउ थरे -90 होची बा हाइपर पोलराइजेशन होची एंड हाइपर पोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू द लेट क्लोजिंग ऑफ k plus voltage gated channel। समझते ना बुझी पाइलो हाउ द इंपल्स कंडक्टेड in a non-myelinated nerve fiber। if you are in a doubt then ask me। एटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिलेबो ए पार्ट। nervous system माने you will get one question from the non-myelinated nerve fiber केमिति conduction होची, you will get one question। and जदि तुम कहबो ए चैप्टर रो लॉन्ग क्वेश्चन कोन अछि, it is a very good long question। एटा तुम +3 भी पढ़थिबो, एटा सबडू माने मोस्ट ऑफ टाइम एटा रिपीट होय। नेक्स्ट किछ डाउट अछि कार ना मैं आगु जिबा मैडम k plus गेटवे चैनल ला केमि खोलेबो? कोडा कोडा k plus Na गेटवे plus चैनल ला k plus हाँ Na plus जतबे एंट्री करछि Na plus वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हैला माने कोन हबो से पॉजिटिव आयंस गुडा को कोन करबो भीतर को आनिबो, माने Na plus ता भीतर को आसला मेंटेन ही काम को +70 MV सॉरी +40 MV हैला एंड दिस +40 MV इज एक्ट एज a specific electric potential for the k plus voltage gated channel। then k plus voltage gated channel open हबो कारण ताको ଗୋଟେ सिग्नल मिला कि एबे हमर डिपोलराइजेशन हे गलानी जेति होबा गता, देन सी ओपन हबो, सी ओपन हेले से पुन थरे रिपोलराइजेशन स्टार्ट करबो बाय रिमूविंग द k plus channel from inside to outside। बुझबला मैडम जो रिपोलराइजेशन स्टेट कोडा माने k plus जेतला बाहर रिपोलराइजेशन जीवो हाँ जेतबे k plus ता बाहर को जीवो, ऑब्वियसली जेतबे k plus बाहर को जीवो सेतबे से हमर नेगेटिव ता मेंटेन हबो। आ सही टाइम रे कोन होछि ना इनएक्टिवेशन गेट भी बंद होछि कार Na plus रो, जहा पर कि हमर Na plus भी भीतर को आसी पारुनी। बुझबला दीटा जिंस गोटे जगह पॉजिटिव आयन बाहर को जाउछि, आ गोटे जगह पॉजिटिव आयन भीतर को आसीबा प्रिवेंट होछि। प्रिवेंट केमिति होछि ड्यू टू द एक्टिवेशन बा ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हे जाउछि, तो फर्दर जहा भी Na plus अछि से भीतर को आस परिबनी। जदि Na plus भीतर को आसुनी त मेंटेन हे परिबनी पॉजिटिव, कारण एपटे कोन होछि पॉजिटिव जहा भी से मेंटेन करथिला k plus बाहर को जाएंगे से पुनी थरे ड्रॉप कलानी। बुझबला
हाँ नेक्स्ट हूँ आमर कंडक्शन इन माइलिनेटेड एक्सन ताले माइलिनेटेड केमती होची देख माइलिनेटेड रे कोन अछि ना हम कहली माइलिन शीथ अछि एंड दिस माइलिन शीथ आर एक्ट एज ए insulation for the to the axon insulation means that will not move any k plus or na plus means जेतिकी भी हमर आयंस अछि दे विल impermeable से बेने कोन जो जेतिकी हमर माइलिन शीथ अछि सेही जगह को जाई परिबेनी ताले जस्ट इमेजिन रे केमिति का तम मान को धर दी जन को कुहाइची गोटे पॉइंट रो बाहर की जीवा पई कि पॉइंट ए रो बाहर की पॉइंट बी को जीवा पई किंतु दी जन पई रोड अलगा जन पई रोड पूरा प्लेन अछि और दी जन को कुहाइची चाली की माने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रे जीवा पई दौड़िया पई मना कराइची ताने ताको भी कुहाइची चाली की जीवा पई तुमको भी कुहाइची किंतु जन को रोड पूरा प्लेन अछि आ जन को रोड रे कोन अछि ना आबडा खाबडा आइची आ से जगह रे कोन अछि ना पानी जमी जाइची तो ऑब्वियसली जहाँ रोड आबड़ा खाबड़ा थी पानी जमी थी सी कौन कर डेली के जो जगह फांका थी तो आउ जन कौन कर जहाँ रोड प्लेन थी चल चली जी चल चली से लेट रे पहुंचो जी डेली की जाइए से आग पहुंचो सिमिलारली ये भी सही हुए जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स रहा से रोड भल अच्छी तो से कंडक्ट करके जाती कंडक्शन करके किंतु नॉन माइलिनेटेड नर्व्स मानकर कौन अच्छी जमी कहली पानी जो जगह जमी थी माइलिन शीथ कौन कर एन प्लस के प्लस को मूव करदेबनी भीतर को ताले जो जगह एन प्लस के प्लस मूव होतबो से जगह रे ही तमरो ए सब इवेंट हबो मानकर गोटे जगह दि पोलराइजेशन होची आ गोटे जगह डिपोलराइजेशन हबो गोटे जगह डिपोलराइजेशन होची आ गोटे जगह रे ही तमरो कोन होतबो रिपोलराइजेशन होतबो सेमिति करबो माने कोन फर्स्ट जगह इंपल्स गोटे जगह कौन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अच्छी देन तुम कौन है ना नेक्स्ट तुम आसला होची इंपल्स आसला किंतु जेहेतु मझिरे कौन रही माइलिन शीथ रही दैट हैव टू लीव और जंप टू द नेक्स्ट जोटी नोड्स ऑफ रानवियर अच्छी नोड्स ऑफ रानवियर कौन अच्छी परमिएबल अच्छी जहाँ भी ट्रांसपोर्टर अच्छी से ट्रांसपोर्ट कर पारिबो से जंप करके नेक्स्ट को जीवो ताने से जो मझिरे जो जंप करिगला से ठीक कौन है ना टाइम बचिला तो से कौन करबो ना जति टाइम नॉन माइलिनेटेड यूज होतला एठी माइलिनेटेड से टाइम गैप टा कमी जाउची सेते कि कौन होची ना माइलिनेटेड नर्व फाइबर माने शीघ्र नर्व कंडक्शन करंती कंपेयर टू द नॉन माइलिनेटेड बुझि पालो आ बेले बेले क्वेश्चन आसीबो व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पोंसिबल कौन फैक्टर हे परबो जदी माइलिन शीथ रो लेंथ अधिका थिबो स्पीड आउरी अधिका हबो जदी डायमीटर अधिका थिबो सेटा भी आल्सो हेल्प करबो कि कंडक्शन आउरी फास्ट हबो बुझि पालो नेक्स्ट होची हमरो सिनाप्स जेटा मैं सिनाप्स कौन सिनाप्स कहते गोटे फंक्शनल पार्ट जोटा कि इंटरेक्शन करते दीटा सेल ताले एठी देख दीटा नर्व अच्छी गोटे नर्व रो एंड अच्छी आ गोटे नर्व रो फर्स्ट स्टार्टिंग अच्छी माने गोटे जनकर एक्सन टर्मिनल अच्छी आ जनकर डेंड्राइट्स अच्छी तो एठी कौन हो ना प्री सिनाप्टिक नर्व न्यूरॉन कौन ना जोटा प्रथमे थिबो पोस्ट सिनाप्टिक माने ता तळे अच्छी जोटा तब एबे कौन हो ना सिग्नल आसिला प्रीसिनाप्टिक न्यूरॉन नो सिग्नल आसला प्रीसिनाप्टिक न्यूरॉन सिग्नल आसला माने कोन हबो डेंड्राइट रो सेल बॉडी रो एक्सन नो आसला एक्सन टर्मिनल ले देन एक्सन टर्मिनल ले कोन थाय ना बहुत सारा सिनाप्टिक वेसिकल्स थांती एंड दिस सिनाप्टिक वेसिकल कैरीज द न्यूरोट्रांसमीटर एंड हियर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विल बी देयर वन इज योर एसिटिल कोलिन तो जो सिनाप्टिक वेसिकल अछि सेट सब कोन अछि तमरा ता भीतर अच्छे एसिटिल कोलिन जेतले सिग्नल आसुची से जो जहाँ भी इम्पल्स आसुची इम्पल्स पाएंगे तार बॉर्डर रे बा एक्सन टर्मिनल ले बहुत सारा सीए प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल अछि से इम्पल्स पाएंगे वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होची लाइक दैट ऑफ द केमटन कहथिले एन प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होची ड्यू टू दैट इम्पल्स बा एक्शन पोटेंशियल तो एटी कोन होची कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होची देन कोन होबा कैल्शियम रश करबो हायर कंसंट्रेशन बाहर अछि लो कंसंट्रेशन भीतर अछि कैल्शियम रश करके भीतर को जिवो माने एक्सन टर्मिनल को भीतर को जिवो व्हेन द calcium come and in contact with the synaptic vesicle they will rupture the synaptic vesicle and allow the acetylcholine to exocytosis से मैंने कौन करेंगे ना बाहर ऐसे synaptic vesicle लो बाहर ऐसे कि synaptic cleft भीतर रहे synaptic cleft कौन it is a gap in between the presynaptic neuron and postsynaptic neuron एबे कोन हला ना Cl+ भीतर को पड़ेला Cl+ कांटेक्ट रे आसी कि सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर हैला सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर पय कि कोन हबो ना जा भी एसिटिल कोलिन थिला बाहर के आसी कि हम कोठी अछि से जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट रे अछि synaptic cleft रे जतळ अछि then that will act as a signal or that will act as a ligand for the पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन ने जहाँ भी तुम डेंड्राइट्स थे तांका पाखरे कौन थी ना बहुत सारा लिगेंड गेटेड चैनल्स थी तो लिगेंड गेटेड चैनल्स मान को कौन दरकार कोडे लिगेंड्स दरकार ओपनिंग पे की एंड हियर एसिटाइलकोलिन मींस द न्यूरोट्रांसमीटर आल्सो एक्ट एज अ लिगेंड तो न्यूरोट्रांसमीटर रे कौन करिवो जोटा एसिटाइलकोलिन अछि एट देखो एसिटाइलकोलिन जोटा अछि से कौन कला ना एक्ट कला लिगेंड परिका देन कौन हबो ना लिगेंड परिका एक्ट कले ओपन कर देबो लिगेंड गेटेड चैनल को ओपन कर देला माने जहाँ भी आयंस भीतर को जिबार थिबो जहाँ भी इंपल्स
भीतर भीतर को जिबार थिबो से कोन करबो नेक्स्ट जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन थिबो से ट्रांसफर हे गला देन ए एसिटाइल कोलिन ने किछि काम नै देन कोन हबो ना एसिटाइल कोलिन डिटैच हे जिवो से लिगैंड तारु डिटैच होला परे ए जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट अछि टोटा एंजाइम थाए एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज कोन करबो एसिटाइल कोलिन को रप्चर करबो से ब्रेक करके एसिटाइल आउ कोलिन बनेबो देखो एटी छोट छोट करके दीटा एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन लिखा है से छोट छोट करके दीटा माने चोपा ब्रेक पड़छ माने गोटे गोलटा आधा आधा कि हाफ सर्कल पड़छ माने गोटे एसिटिन गोटे होची कोलिन डिग्रेडेशन परे कोन हबो ना ए जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन परे ए जो एसिटिलिन आउ कोलिन हेला ए दी जण पूर्ण थरे एंट्री कर जिवे तमरो कोटा प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एक्सन टर्मिनल को एंट्री करी गले देन प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एक्सन टर्मिनल ले आउट एंजाइम थे एसिटिल कोलिन ट्रांसफरेज से कोन करबो ए जो एसिटिल आ कोलिन को पूर्ण थरे बॉन्ड बने की एसिटिल कोलिन कर दबो आ ताको सिनेप्टिक वेसिकल ले रखि दबो पुनी से वेट करबो कि नेक्स्ट के इंपल्स कते वाला आसबो नेक्स्ट इंपल्स आसले से पुनी सिमिलरली नेक्स्ट इंपल्स आसले कैल्शियम चैनल ओपन होबो कैल्शियम चैनल ओपन होले पुनी से कैल्शियम भीतर को जीवो कैल्शियम भीतर गले एक्सोसाइटोसिस हबो एक्सोसाइटोसिस रे तमर पुनी थरे एसिटिल कोलिन भारियो तो एई टाइम एई जो प्रोसेस ता रिपीट हबो फॉर कम्युनिकेटिंग इन बिटवीन द सिनाप्स माने गोटे न्यूरॉन आ गोटे न्यूरॉन भीतर कम्युनिकेशन एमिति हबो बुझि पाला तो सिनाप्स कोन जानिथिला सिनाप्स होची ती प्रकार गोटे होची इलेक्ट्रिक सिनाप्स आ गोटे होची केमिकल सिनाप्स एबे जोटा हमें पढिले एटा होची केमिकल सिनाप्स माने केमिति केमिकली बा न्यूरोट्रांसमीटर रो प्रेजेंस रे केमिति तमरा ट्रांसफर होची नेक्स्ट होची तमरा इलेक्ट्रिक सिनाप्स कोन इट इज अ पोटेंशियल व्हिच कंडक्ट इन बिटवीन द मैम ताले से जो हमर जो सिनेप्टिक एटा से कैल्शियम आयन न पोटेंशियल जो कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करो जति कैल्शियम Ca2+ आयन रहबो सेति सेत पर्यंत चलिबो हमर जो नर्व कंडक्शन ता ना नर्व कंडक्शन देखो तो हम खाली इंपल्स टा पास करिया अछि माने गोटे न्यूरॉन आ गोटे न्यूरॉन को नबार अछि तो सेतिके तुमको सेतिके पास करिया अछि ना तो जते बेले गोटे इंपल्स आसिला जेमिति Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल गोटे इंपल्स आसिले से ओपन होतला सेमिति एठी गोटे इंपल्स आसिला माने एक्सन टर्मिनल गोटे कैल्शियम जोटा थिबो गेटेड वोल्टेज सॉरी कैल्शियम चैनल्स गुडा जोटा थिबो हेटा ओपन हे जिवो तो कोन हबो ना भीतर जो सेल्स अछि बा एक्सन्स अछि थेटी कैल्शियम कम थिबो बाहर जो अछि और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेठी कैल्शियम अधिक थिबो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करबो लिगैंड गेटेड चैनल माने पैसिव ट्रांसपोर्ट मूव करी गेला माने व्हेन दे कम इन कांटेक्ट तांको केवल कोन अछि ना सेही जिंसटा नै कि आउ जन को दबार अछि सेति काम हे गेला से पुन थरे रिटर्न कर जे पुन थरे वेट करबे कि आउ थरे को जिंसटा आसीबो ट्रांसपोर्टर भले काम करबे से माने इंपल्स ओके बुझबेला एठा होछ ना केमिकल नेक्स्ट होछ इलेक्ट्रिकल कोन टिके मने पका प्लाज्मोडेस्माटा बा सेल जंक्शन यदि मने थिबो तन बहुत भलो यदि सेल जंक्शन तम पड़थिबो गैप जंक्शन ने कोन होय दीटा सेल्स थांती दीटा सेल रो कोन थाय ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड हे थांती जोटा कि हमें जेमति माने प्लांट्स केसन देखि प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड हे गोटे सेल ब्रिज बने थांती गैप जंक्शन भी सेमते जेमति कि हमें कहबा कि गैप जंक्शन कोठी अछि कहलो काली पढिथिले हमें कार्डियक मसल्स हम कहिथिले मसल्स रे कोन अछि ब्रांचिंग थिबो माने से जगह सेटा कोन करबा ना हेल्प करे कि गोटे सेल ब्रिज बनेबारे तो सेही जोटी ब्रांचिंग हेतै बा जोठी दीटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनेक्ट हे थांती सेठी गोटे प्रकार प्रोटीन थाए ताको कनेक्शन कोंती कनेक्शन न काम होछि कि फर्स्ट जो माने गोटे सेल माने सेल ए रो सेल बी को कोन करबा ना इंपल्स पास करबा थ्रू दैट सेल ब्रिज भीतर कनेक्शन अछि कनेक्शन ता काम करबा कि गोटे जगह इंपल्स ता गोटे जगह को पास करबो इलेक्ट्रिकल इंपल्स अछि माने जाबे तमरो माने गोटे वोल्टेज पोटेंशियल थिबो ताको खाली गोटे जगह अन्य जगह को पास करबो एटा बहुत फास्ट हुए गैप जंक्शन रे तमरो मेसेज ट्रांसपोर्ट ता बहुत फास्ट हुए कारण ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कनेक्शन कोठी कोठी अछि स्मूथ मसल्स रे अछि ब्रेन अछि कार्डियक मसल्स रे अछि एटा हेल्प कम करे ना बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करे और सिंक्रोनाइजेशन बहुत भल से ये करे एटा होछ तमरो सिनाप्स सरी गला एठा गोटे अछि जोटा म कहउतिले एटा देखे देखो जोटा म कहली तेतबेले एटा देखो देखो -70 परे गोटे किछटा ग्राफ ऊपर को जाईची आउ पूरा जाई कि गोटे देखो 55 जाई जाईची भाबो जदि गोटे ने कोन गोटे वीक स्टिमुलस जाउची तने देखो सेटा ड्रॉप हे जाउची किछ टाइम परे तो ताठु पे जदि अधिक माने जदि अधिक तमे स्टिमुलर आमे जदि स्टिमुलस ता देचंती से 60 जाय पहुंचला बट -60 जाय पहुंचला बट -60 हमरो थ्रेशोल्ड में तने से पुन थरे ड्रॉप हे गेला नेक्स्ट थर्ड ता देखो से भी -60 जाय जाउची किंतु से बेसी टाइम रहउची पीरियड माने परसिस्ट करछि टिके लॉन्ग पीरियड पर्यंत बट परसिस्ट लॉन्ग पीरियड जे कला कोन हला किंतु तर एम्पलीट्यूड कम अछि -55 नुए तने से पुन थरे ड्रॉप होछि जेतेबे गोटे इंपल्स -55 क्रॉस करछि देन कोन हबो तमरा डिपोलराइजेशन बाकी से रेडी हे जाउछि बुझि परछ
-50 क्रॉस कला देन से ऊपर को पूरा जाइथिबो एठी कोन तुम शो करछि कि को इंपल्स केते इंपैक्ट पके पारे सिमिलरली जेंति हाइपर पोलराइजेशन कहले -70 हे गला तन सेट रहि जिया गता जदि k प्लस बेसी ओपन हे गला -70 रो -75 हे जाउथबो को जगह -78 हे जाउथबो देन 80 देन 90 एति बाटा से आसी परिबो हाइपर पोलराइजेशन माने k प्लस वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हे जाइछि बहुत टाइम पे कि सेति पे धीरे धीरे ताबले एमिति न कि हाइपर माने कोन पोलराइजेशन सब बळे -90 जाय जीव ना एति केति जाय जाय परथबो किंतु ठीक टाइम कहबा हाइपर पोलराइजेशन जब -90 टच करथबो हम कहै पारे गोटा रेंज अछि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा -40 रु -90 भीतर ही रहइबो ता भीतर ही जाउथबो -90 हेले हमरो हाइपर पोलराइजेशन -70 हेले हमर टिपिकल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बुझि पाइला एई चैप्टर टा एक्चुअली बहुत इंपोर्टेंट हमरो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू रे तो जार किसी डाउट थिबो खाली देखि कि मते पचारिबो न्यूरोट्रांसमीटर देखो ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर ना अछि जोडा कि आमे कहि परिबा कि किछटा पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर थिबो किछटा नेगेटिव ट्रांसमीटर थिबो गो थ्रू इट एटा किछि नै नॉर्मल कोड के काम करछि को सेल ले कोन इफेक्ट करछि कोटा पॉजिटिवली इफेक्ट करछि कोटा नेगेटिवली इफेक्ट करछि डोंट गेट कंफ्यूज बेले बेले कोटे जिंस ही दी प्रकार इफेक्ट करि पारे पर अलग अलग सेल रे जेमति एसिटिल कोलिन देखिबो दीटा जगह कोटे जार पॉजिटिव करथो कोटे जार नेगेटिव करथो ना बेले बेले न्यूरोट्रांसमीटर मीटर पे केमती क्वेश्चन पड़े कहलो एमती देथिबो कि जहां भी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर गिवन बिलो बट फ्रॉम दिस ट्रांसमीटर व्हिच इज द ओनली एक्टिवेटर पड़का काम करथुवा जेमती एसिटिल कोलिन थिला तमे हेटी एसिटिल कोलिन कहबोनी कारण एसिटिल कोलिन दीटा प्रकार काम करि पारे बोथ एक्टिवेटर बोथ नेगेटिव भी काम करि पारे नेगेटिव इंपैक्ट भी पकेबो एक्टिवेटर भी काम करबो एटा खाली ठीक मन रखिबो कि कोटा पॉजिटिव इफेक्ट पकोछि कोटा नेगेटिव इफेक्ट पकोछि ओके नेक्स्ट यूनिट होछि हमर इंटरमेंटल स्ट्रेस एंड थर्मोरेगुलेशन एबे जो चारटा यूनिट रहला बाकी एटा तम टिके इकोलॉजी टाइप रो तो नॉर्मली टिके तुम स्टोरी बई का लागि पारे तो सेमिति का इकोलॉजी टाइप रो बट एठी कोन होबा ना तो छुआ माने भाबंती सबडो अधिका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स सेल बायोलॉजी रो क्वेश्चन आसीबो तो से माने पूरा पूरी जदि कहबो 90% टाइम जदि सेठी देखि इकोलॉजी और इवोल्यूशन को पूरा 10% टाइम देखि जानते जाइथांती कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई कि किंतु भूल धारणा केबे भी एई जो स्पेशली इवोल्यूशन और इकोलॉजी को केबे भी इग्नोर करबनी क्लासिकल बायोलॉजी माने जूलॉजी तो बहुत छुआ इग्नोर करंती जोडा तमर नॉन कोडेड कोडेड स्पेशल यदि पचारिबो बहुत छुआंकर मन न थाए तो सेमिति का किंतु केबे भी तमे इकोलॉजी इवोल्यूशन को इग्नोर करबनी कारण तमे यदि पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिबो 40% यदि 100% क्वेश्चन हला तुमको 30 टू 40% क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट मिलिबो इकोलॉजी और इवोल्यूशन आ एठी किछि तमरो मैथ लगेबार नै किछि लगे नै कांसेप्ट बुझछ टर्म माने अछि देन करिवो यदि माने नै देन छाड़िबो तो एठी किछि भी कैलकुलेशन नै जो जण यदि जण को यदि बहुत पुअर देन तमे एई पार्ट रो भी तमे मार्क उठे पाइबो तो केबे भी पोर्शन इग्नोर करबनी नेक्स्ट होची एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड थर्मोरेगुलेशन एनवायरमेंटल स्ट्रेस कोन जदी एनी एक्सटर्नल इवेंट दैट टेक प्लेस कॉज स्ट्रेन टू एनी टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम जदी हम कुछ स्ट्रेन माने हम बॉडी पर पडुची तन हम कहि परबे कि एटा कोन होची ना एटा प्रकार स्ट्रेस एंड इफ द स्ट्रेस इज डन बाय द एनवायरनमेंट इट मेनली प्रिवेंट द प्रोडक्टिविटी and reproductive success and environmental ecosystem development को mainly affect करबो then what are the stress factors competition hela predation hela disease hela increase in decrease in nutrients moisture disturbance hela wildfire hela तमे कहि परिबो वोल्केनो हला ई सब प्रकार तमर कोन करबे ना एनवायरमेंटल स्ट्रेस पर के काम करे देन एक्सपोजर कोन एक्सपोजर होची जदी कोनसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्ट्रेस कांटेक्ट रे आछी बा इंटरेक्शन आछी रहउची एक्सपोजर एक्सपोजर जदी इंटेंस होची बहुत अधिक आइ जाउची जति कि दरकार ताकू अधिक आइ जाउची तो दीटा कंडीशन हला तो किछि ऑर्गेनिज्म थांती कोनटा बियर कर जांती बा टॉलरेट कर जांती आ किछि ऑर्गेनिज्म थांती टॉलरेट कर पारंतीनी जो माने टॉलरेट न करि परिबे से कोन करिवे ना एक्सपोजर अगेंस्ट रे कोन करिवे ना निजे उडा रेस्पॉन्स करिवे रेस्पॉन्स केमिति करिवे आइदर इकोलॉजिकली नॉर बायोलॉजिकली चेंजेस करके आ जदी जने टॉलरेट करि पाजि टॉलरेट केतला करबो जदी निजर कोनसे डैमेज हो नथो तन तमे टॉलरेबल जदी निजर किछि डैमेज होउची तमे कहबा माने तुमको भोक लागुची जने खाइबा तुमको भोक लागुची जने कहूची खाइबो ना तमे माने कहबो कि ना मते भोक लागुनी मु खाइबिनी मु सेति सही परिबी ना तम भीतर क्षति होची तमे कहि परिबनी कि तम क्षति होनी टॉलरेबल सही माने जो माने कर बिना डैमेज रे से माने सेटा को एडजस्ट करि पाछते
then what is acclimatization and adaptation ए टर्म बहुत थोड़ा आसे केमिति आसीबो एपटे धर डिफरेंट टर्म दे देथिबो सेपटे डिफरेंट तर डेफिनेशन देथिबो देन देथिबो कि जस्ट मैच द कलर चारटा खंड टर्म देथिबो तळे पुनी ऑप्शन देथिबो तो acclimatization कोन acclimatization मींस within the tolerance limit माने हमें जेति की टॉलरेट करि परिबा सेति की भितरे and organisms adjust its behavior and physiological response in changing environment जदि हमें हम टॉलरेंस लेवल भितरे हमें जेति की एडजस्टमेंट करि परछन एनवायरमेंटल स्ट्रेस को सेटा को हमें कहि परिबा acclimatization कोन ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे की हुए गोटे लाइफ स्पैन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे की हबो और टेम्परल चेंज हबो कोन सी जेनेटिकल चेंजेस हुए तो सेगुडा को कोन कोन हमें कहि परिबा जेमती आम मानकर कोन हमको शीत लागिले हमें कोट पिनचंती किंतु हमें वर्ष सारा कोट पिननाती दैट इज कम्स अंडर एक्लिमेटाइजेशन नेक्स्ट कोन होई परबो ना साल्मन जानथिबो जदी नॉर्मली साल्मन नो डेवलपमेंट पई की बा तार माने कोन तार ग्रोथ पई की आ तार ब्रीडिंग पई की डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन दरकार ब्रीडिंग पई ताको सॉल्ट वाटर दरकार आ तार ग्रोथ पई की फ्रेश वाटर दरकार तो सी कोन करे मूव करे बा मूवमेंट करे तो सेटा को तुम कहि परबो एक्लिमेटाइजेशन चेंज ड्यूरिंग द अल्टीट्यूड हमें अल्टीट्यूड बेसी बड़ो अल्टीट्यूड को गले हमें जेमती की चेंजेस माने भाबुतबा हमको जेमती चेंजेस हमें फील करतबा नॉर्मल टेरेस्ट्रियल बा ग्राउंड लेवल हम सेटा करनतबा तो सेटा भी गोटे प्रकार एक्लिमेटाइजेशन देन व्हाट इज एक्लिमेशन एक्लिमेटाइजेशन गोटे नेचुरली होची एक्लिमेशन कोन जदी आमे कोनसी ऑर्गेनिज्म को नै की ताको कोन करछन ना एक्सपेरिमेंटल लैब रे अनफेवरेबल क्लाइमेट को माने कोन करछन ना एक्सपोज करछन देखि तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होतबो तो गोटे थाय टॉलरेंस लिमिट तापर हम कोन करथिबे ना बहुत सारा देखिथिबो रिसर्च पेपर देखिथिबो कि माने कर पारामीशियम कोन करछि ना तारो एतिके CO2 लेवल से बंची परिबो किंतु तमे ताठू अधिक CO2 लेवल ताको एक्सपोज करछो देन दैट शुड कम्स एज द एक्लिमेटाइजेशन जदी से अधिक CO2 रे बंची जाउची देन तमे कोन करछो एक्सपेरिमेंट करके करछो सेटा तमे आर्टिफिशियली करछो देन दैट इज एक्लिमेशन और एक्लिमेटाइजेशन माने नेचुरली होची देन व्हाट इज adaptation is a gradual permanent changes which occurs from generation to generation माने एटा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रे होबो जेनेटिकली लेवल चेंजेस होबो कारण एटी कोन पई कि ना इट इज मेनली इंपोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल और कंटिन्यूटी सेति पई कि हम कह परबा एडाप्टेशन गोटे माने कोन लॉन्ग चेंज आगु जेमति कि एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल तमे नै परिबो पोटेंशियल बीक इन बर्ड्स जेमति कि गैलापागोस आइलैंड रो जो कोन नैथिले डार्विन फिंचेस नैथिले फर्स्ट डार्विन फिंचेस जाइथिले समस्तंकर बीक सेम थिला किंतु धीरे धीरे कोन हैला फूड हैबिट को लेके से निजर फिंच माने जो बीक गुडा को अलगा कर देले कि तमे तो कहबो ना फास्ट चेंज हे गला पारे एबे सही जो बर्ड्स माने अछंती से माने कोन प्रीवियस बीक को जाई परबे कि बा प्रीवियस तांकर पेरेंटल बीक समस्त जेम थिला सेमते हे परबेनी कारण जेनेटिकल लेवल रे भी चेंज हे जाईची कारण से माने अडॉप्ट करि जाईचंती एक्लिमेटाइजेशन कोन हमें चाहिए चेंज कर परबा कारण एटा टेम्पररी थाए कम टाइम पे कि थाए जेनेटिकल लेवल ले न थाए किंतु अडॉप्टेशन हमें चाहिए चेंज कर परबेनी कारण ऑलरेडी हमें ताको कोन करथांते ना जेनेटिकल लेवल ले चेंज कर देइचंती then अच्छी टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल स्ट्रेस कोन अछि गोटे होछि हमर फिजिकल स्ट्रेस केता होबो जदी हम कोनोसी काइनेटिक एनर्जी को जदी एक्सपोज होचंती ता हमर हैबिटेट डैमेज होबो जेमति कि हला हमर सुनामी हला वोल्केनो हला टोर्नाडो हला एक्सप्लोजन हला ए गुडा देन वाइल्ड फायर माने एक्सेसिव कम्बशन ऑफ द बायोमास आइदर जने जने कोन करथि ना इंडस्ट्री बने पे आर्टिफिशियली माने जंगल जाली थांती आ किछि थांती कि नेचुरली लाइटनिंग है कि कोनते वाइल्ड फायर लागिते बट इट विल कॉज ए ह्यूज लॉस ऑफ बायोमास वाइल्ड लाइफ एंड आल्सो डिफरेंट टाइप रो जा भी माने पोल्यूशन बहुत सारा हमको प्रॉब्लम ही थाए देन केमिकल पोल्यूशन माने हम जानि छंती तर हमर एटमॉस्फियर रे स्पेसिफिक अछि कि ऑक्सीजन एतिक लेवल रहा दरकार कार्बन डाइऑक्साइड एतिक रहा दरकार जदी एनी इंक्रीज इन दैट और डिक्रीज इन दैट माने गैसेस हैला किबा कोनसी केमिकल्स हैला देन दैट विल कॉज केमिकल पोल्यूशन इन द गैसेस भीतर ओजोन हैला किबा SO2 हैला SO2 कोन सल्फर डाइऑक्साइड इट इज अ वेरी पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कराए नेक्स्ट होची केमिकल जेंत कोले पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन रे हम खाइबा रे बढ़ी गेला देन दैट विल आल्सो डैमेज टॉक्सिक एलिमेंट लाइक हेवी मेटल्स मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक एंड दीज आर रेस्पोंसिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज बहुत सारा डिजीज देखियो जोटा कि मर्क्यूरी और आर्सेनिक पे हेता और सेटा क्यूरेबल भी नुहे सेति पई कि जो केमिकल पोल्यूशन थाए हेटा बहुत डेंजर थाए थर्मल पोल्यूशन माने आमे जानजते आमे गोटे लेवल हीट आमे माने बियरेबल करनबा जदी से हीट थारु किमा टेंपरेचर जदी बढ़ी जाउची देन दैट विल आल्सो कॉज इकोलॉजिकल स्ट्रेस मींस इफ नेचुरली आमे देखिबा जेमति नेचुरल स्प्रिंग हैला मैरीन सबमेरीन वेंट्स हैला तो से जगह जदी कोन हैला नेचुरली जदी जियोथर्मल माने ज्योग्राफिकल कंडीशन पई कि इंक्रीज हेची टेंपरेचर देन से जगह जो एक्वाटिक एनिमल अछंती से माने अफेक्ट हेबे आ गोटे कोन
आर्टिफिशियली कौन आम मैंने तो बहुत माने दान करमती इंडस्ट्री एत सारा कर पावर प्लांट लगौंट पावर प्लांट पानी को हॉट वाटर सीधा रिवर में छाड़ुंट विदाउट एनी ट्रीटमेंट तो दैट विल कॉज वेरी लॉस डैमेज टू द एक्वाटिक एनवायरनमेंट मीन एक्वाटिक एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनिज्म अच्छा डेथ करेबो ना कहार खाइबार एपट सेपट करेबो ना बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है देन रेडिएशन स्ट्रेट माने जदी आम एक्सपोज होबा कोनोसी आयोनाइजेशन एनर्जी like that of the nuclear waste or explosion then it also cause various type of diseases climatic stress se jibo tamara temperature moisture solar system solar radiation like that biological stress re kona asibo jemti ki relationship thai पड़िथिबो predation hela parasitism hela कंपटीशन है कंपटीशन में कौन हुए दी जंकर लॉस हुए जे विन करे से भी लॉस रे पड़े जे माने कोन जे लॉस करे से तो लॉस रे ही थाए विन जे करे एमती कंपटीशन होचे माने जे विन करची तार किछि ना किछि एनर्जी लॉस हेतिबो फाइटिंग टाइम रे नेक्स्ट होची प्रिडेशन टाइम रे जे प्रे थिबो तार लॉस जे प्रेडेटर थिबो तार विन तो एथिरे भी हमर कोन थाए ना बहुत सारा डैमेज हो मन कर आमर आम कहबा कि जदि आम गोटे धर एनवायरनमेंट अच्छी से आम कहबा कि आम जी प्रेडेटर अच्छी रिमूव करबा प्रेडेटर माने जदि आम बाघटा को रिमूव कर दउचंती गोटे माने टाइगर को आम रिमूव करचंती गोटे एनवायरनमेंट रु बा गोटे स्पेसिफिक एरिया रु बा गोटे फॉरेस्ट रु देन दैट विल इंपैक्ट नेगेटिवली केमति का जदि आम टाइगर को रिमूव करचंती देन कोन हबो हर्बिवोर माने हर्बिवोर मानक नंबर बढ़ी जिवो हर्बिवोर मानक नंबर बढ़ले ग्रेजिंग कैपेसिटी बहुत अधिक बढ़ी जिवो ग्रेजिंग कैपेसिटी बढ़ी गेले कोन करबो that will negatively impact कारण हमर जहाँ भी एनवायरनमेंट थिबो सेटा सब इम्पैक्ट माने इम्पैक्ट हो जो बड़ बड़ धर ग्रेजिंग रो एनिमल जो माने बढ़ी जिवे तना लॉस होबा हमर कोन स्पेशली फॉरेस्ट हमर लॉस होबो तो सेति में जहाँ भी जदी किछ हम डिस्टर्बेंस करबा बायोलॉजिकली दैट विल इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आवर एनवायरनमेंट देन बायोलॉजिकल पॉल्यूशन कन एलियन स्पेसीज माने बाहर गोटे स्पेसीज आन की आमे इंट्रोड्यूस करचंदी गोटे नेटिव स्पेसीज सहित एंड दैट विल नेगेटिवली अफेक्ट कोन करबो जदी एग्जांपल देखिथो वाटर हायसिंथ पानी रे देखिथो गोटे ग्रीन ग्रीन कलर रो बुरो जोटा भासता से कोन करबो ना जदी वाटर हायसिंथ गोटे जगह अछि जे सी कोन करबो ना सेही एक्वाटिक रे जति एनिमल्स अछंती तांकु तो मारिबो ता छडा भी पाखरे छोट छोट जहा भी प्लांट्स भी अछंती तांकु भी बढ़िया को दबनी कारण तार रेजिस्टिविटी बहुत अधिक एंड दैट आल्सो कम्पीट विथ द नेबर जहाँ भी एनिमल्स और प्लांट्स थे सहित कम्पीट कर डिजीज प्रति रेजिस्टेंस पावर बहुत अधिक ही थी से जेनेटिकली बहुत अधिक डेवलप था से इनडायरेक्टली से कौन करेंगे पॉल्यूशन करेंगे आवर नेटिव एनवायरनमेंट को नेक्स्ट ये जो स्ट्रेस होची सेटा कंट्रोल होची हमर हार्मोन द्वारा बोथ इन सीएनएस एंड पीएनएस सीएनएस रे जदे कोकोडा कंट्रोल करोची हमर हाइपोथैलेमस आ ब्रेन स्टेम से माने कोन करछन ना कोड स्ट्रेस हला हाइपोथैलेमस को से एक्टिव करेबो देन दैट विल स्टार्ट रिलीजिंग एसीटीएच एंड वासोप्रेसिन आ जदे पीएनएस रे हला देन दैट विल एक्टिव योर एडेनोमेडुलरी सिस्टम को कले सेटा एठी गोटे फिगर थिला एटी कौन होची मन कर आमको थर्मो टेम्परेचर चेंजेस होची टेम्परेचर चेंजेस हेले कोन होबा ना दैट थर्मो रिसेप्टर विल गेट एक्टिव थर्मो रिसेप्टर माने पेरिफेरल रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर बोथ विल गेट एक्टिव जोटा कि स्किन ने अछि से माने एक्टिव कले दे विल सेंड द सिग्नल टू द सीएनएस थ्रू द एफरेंट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट तो सीएनएस रे कोन सेंटर हमर हाइपोथैलेमस एक्टिव होबो हाइपोथैलेमस एक्टिव हेले से ताको फास्ट कोन करबो ना देखिबो कि कोन स्ट्रेस अछि स्ट्रेस अनुଯାयी कि से ताको सिग्नल दबो कि एफरेंट पाथवे को एक्यूट जो नर्वस सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो अछि ताको एक्टिव करा दिन से कोन करबो ना एफरेंट पाथवे जो कोन करबो ना एक्टिव करबो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जता एक्यूट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पाथवे एक्टिव होबो दैट विल लीड टू रिलीज ऑफ सीए एंड जीएच हार्मोन जीएच मींस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड योर कैटेकोलामाइन ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रेनल ग्लैंड रिलीज हुए से माने जते बेले कोन तुम जानिथिबो स्ट्रेस हार्मोन को जाय एड्रेनल ग्लैंड जो हार्मोन गुडा रिलीज हुए तो से माने कोन करबे ना मेटाबॉलिज्म को अल्टर करबे और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को चेंज करके संगे संगे रेस्पॉन्स देबे जेमती आ गोटे अछि टेम्परेचर वेरिएशन पय कि पोइकिलोथर्मस अछंती होमियोथर्मस अछंती पोइकिलोथर्मस होछंती कोल्ड ब्लडेड एनिमल होमियोथर्मस होछंती वार्म ब्लडेड एनिमल आकु आउ कोन कहै छै एक्टोथर्मस और एंडोथर्मस भी कहै पोइकिलोथर्मस माने कोन ना दे आर अनएबल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट जदी एनवायरनमेंट रे टेम्परेचर फ्लक्चुएट होछि तन तांकर टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट हबो होमियोथर्मस कोन एमिति नय बट दे हैव द कैपेसिटी टू मेंटेन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर their body temperature will not fluctuate
एठी गोटे देख देछि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गोटे थाए एम्बिएंट टेम्परेचर माने द टेम्परेचर ऑफ एयर इन ए स्पेसिफिक स्पेस गोटे दरन गोटे स्पेसिफिक प्लेस नेले सेई टाइम रे गोटे एयर गोटे स्पेसिफिक कोन थिबो तमर टेम्परेचर थिबो सेटा को हम एम्बिएंट टेम्परेचर कहउजंती आ एठी कोन अछि Q10 होची को act as your temperature coefficient. Q10 माने कोन the rate of reaction will increase for every 10 degree rise in the temperature. आमे जति माने कर 30 डिग्री अछि 30 डिग्री गोटे मेटाबॉलिक पाथवे होची तमे देखो तको जति 40 डिग्री कर दोचो तने Q10 तो करचो माने टेम्परेचर चेंजेस तमे 10 डिग्री बढ़ौचो देन कोन हबो ना तमरो किछि फोल्ड रे मेटाबॉलिक पाथवे चेंज हे जो माने कर एबे जति गोटे जति कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट दोची जति तमे Q10 करचो ताने से केते दोथबो डबल दोथबो जति Q10 जति तमे 3 थिबो ताने Q10 में जति 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज करचो ताले से कोन करथबो ट्रिपल दोथबो से अनुसार देखो Q10 2 माने कोन ये डिनोट करछि कि ए जो Q22 होची एटा रे जति ए जो मेटाबॉलिक पाथवेटा होची सेटा नॉर्मल जति नॉर्मल टेम्परेचर रे जति हमें कहउछन कि छोटे प्रोडक्ट दोची ताको जे हम 10 डिग्री बढ़े दोचंती ताले से प्रोडक्ट डबल हो जाउची सेमिति आ गोटे पाथवे अछि तार Q10 होची 3 ता माने कोन जदि हमें टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़े दोचंती ताने मेटाबॉलिक पाथवे 3 डबल बा 3 फोल्ड बढ़ी जाउची बुझ पाइला जदि हमें कहउछंती कि Q10 जदि 2 अछि देन Q20 केते तारे Q10 होची 2 ताने Q20 माने तमे 20 डिग्री बढ़िछ माने 2 गुना बढ़िछ तो 2 * 2 = 4 जदि Q30 सेमति केते बा 2 * 2 * 2 = 8 ताले तमे जिते आगे तुमको Q10 ने केते बढ़ुछ देखिबो कि 10 डिग्री टेम्परेचर जदि हमें बढ़ौचंती ताले कोन होची जेमति ऑक्सीजन कंजप्शन नॉर्मल बॉडी रे हमें ऑक्सीजन कंजप्शन जति करचंती टेम्परेचर बढ़ला माने हम ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ी जिवो कारण हम मेटाबॉलिक पाथवे फास्ट हुए तो हमें कहि परिबा Q10 जदि होची Q10 is stand for the oxygen consumption धर गोटे जगह होची ऑक्सीजन कंजप्शन Q10 stand for 2 जदि हमें कोन करचंती ना Q3 कहउचंती से टाइम रे कोन हो ऑक्सीजन कंजप्शन ट्रिपल बढ़ी जिवो टेम्परेचर जदि हमें 20 डिग्री बढ़ौचंती तारे कोन हो हमर ऑक्सीजन कंजप्शन डबल हबो जदि Q10 जदि हम 3 कर दोचंती बा जदि हम ट्रिपल हे जाउची ताने ऑक्सीजन कंजप्शन केते हबो 3 डबल बढ़ी जिवो दैट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर हैला सेति में कोन होइना समर टाइम रे कोन होइना जो मेराइन एक्वाटिक फिशेस माने थांदी तांको मेटाबॉलिक पाथवे फास्ट हुए ड्यू टू दिस टेम्परेचर चेंज और टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर बहुत सारा लार्वा अछंती जो माने हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर दियंती नॉर्मल टाइम रे करि पारे स्पेसिफिक टाइम थो से माने करिवे जेमिति कि एग्जांपल होची फ्लाई लार्वा ऑफ द पोलिपेडियम रो लार्वाटा कोन करे ना 102 डिग्री रो कोन करे ना टेम्परेचर को बियर कर दबा आ 102 डिग्री टेम्परेचर केते बडा की बियर कर परबो जत तार मेटामॉर्फोसिस होबार थिबो 102 डिग्री टेम्परेचर बियर कला देन तार मेटामॉर्फोसिस जिवो से नॉर्मल हे जिवो तापर से बियर कर परबनी बट स्पेसिफिक टाइम थिबो जोटा कि टॉलरेंस लेवल हमें सेति कि नै परबा किछटा क्रस्टेशियंस लार्वा अछंती जोटी सुडान आउ ट्रिपोस रे मिलंती सेटा तांकर टॉलरेंस लेवल 80 डिग्री सेल्सियस थाए different animal different achanti then what is lethal temperature hochi that temperature at which 50% of the animals die and 50% survive माने एमिति गोटे टेम्परेचर जोटी की टोटल 100% आमे एनिमल्स नोचंती 50% को समाने से कोन करबो बियरेबल नुहे हेडा को आमे कहबा lethal temperature and then what are the factors for the lethality माने कोन पय डेथ होची फर्स्ट होची थर्मल कोआगुलेशन माने कोन जदि हमें जानजंती डिफरेंट स्पेसीज हैव देयर डिफरेंट एबिलिटीज सब स्पेसीज को पाखरे निज निज किछि एबिलिटी अछि कि टेम्परेचर प्रति टॉलरेंस थिबो कि नथिबो तो जो माने नाहंती तांको बॉडी रे कोन पे डेथ होची फर्स्ट फैक्टर होची थर्मल कोआगुलेशन मींस व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट विल अफेक्ट द प्रोटीन दैट विल डिग्रेड द प्रोटीन तो नॉर्मली प्रोटीन डिग्रेडेशन पे 45 टू 50 थाए माने टेम्परेचर जदि एतिक हबो देन कोन ना तबे देखिथिबो बहुत सारा एंजाइम मानकर स्पेसिफिक हमें काली पढिबा एंजाइम तो बहुत सारा एंजाइम मानकर स्पेसिफिक गोटे टेम्परेचर से ओर से माने काम करंती तो हमें कोन करबा टेम्परेचर बढ़ै चल जाओ तो कोन हो एंजाइम टा डिजेनरेट हे जिवो डिग्रेड हे जिवो कारण कोन पहिना पेप्टाइड बॉन्ड ता तमर भांगी जाउची तो किछिटा किंतु एनिमल्स थांती तांको बॉडी रे जो प्रोटीन्स अछि से माने से 45 तो दूरर कथा से माने 6-7 डिग्री भी उठी पारंती जदि नॉर्मल टेम्परेचर जदि 6 डिग्री 7 डिग्री जदि बढ़ी जाउची देन देयर protein present in their body will get degrade examples कौन ना अंटार्कटिका फिश जो अंटार्कटिका रे फिश अछि त ना होच तर ट्रिमाटोस कोन करे ना सेति के बियर कर पारेनी तार बियरेबल कैपेसिटी होची 6 डिग्री सेल्सियस माने जदि 6 रो जदि हम टिके फ्लक्चुएट करचंती देन द डेथ ऑफ दैट फिश विल टेक प्लेस
देन कौन होची थर्मल इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ऑब्वियसली प्रोटीन हे पारे एंजाइम हे पारे देन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मु कहली जेतेबेला आमे नॉर्मली कोन करछे ना टेंपरेचर बढ़ुछन ऑक्सीजन कंजम्पशन ता से अनुसार बढ़ुची जदि आमे सेतिकी सफिशिएंट ऑक्सीजन हम बॉडी को न दबा देन दैट विल अफेक्ट अब सफिशिएंट ऑक्सीजन जीवनी माने हाइपोक्सिया हबो आ कोन हबो डेथ हे जिवो नेक्स्ट कोन डिफरेंट माने कोन होची ना इंटरडिपेंडेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जेतिकी हबा कथा सेतिकी रेट रे हे परबोनी देन दैट विल कॉज डेथ आ गोटे कोन जो नॉर्मल जो बॉडी स्ट्रक्चर अछि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अछि सेटा मेंटेन हे परबोनी देखिथिबो माने थिबो हमर फ्लूइडिटी रे जति प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल बायोलॉजी पढ़थिबो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करिया पई कि मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोथरे बनि थाए लिपिड्स बनि थाए कोलेस्ट्रॉल बनि थाए किछटा ग्लाइकोप्रोटीन्स थाते ग्लाइकोलिपिड्स थाते तो तांकर इंटीग्रिटी मेंटेन हेता बड स्पेसिफिक टेंपरेचर रे जदि हम टेंपरेचर इंक्रीज करथि देन फ्लूइडिटी ऊपर इफेक्ट पकाय कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करे माने तांकर कोन मेंटेन करे तांकर स्ट्रक्चरल एबिलिटी किंतु कोलेस्ट्रॉल भी केते डिग्री जा मेंटेन करबे बड स्पेसिफिक थिबो तो ताकू क्रॉस कले देन कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन कर परिबनी दैट लिपिड लिपिड इंटरेक्शन लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन लिपिड ग्लाइकोलिपिड इंटरेक्शन सब ब्रेक हबो आ से एनिमल्स टा अल्टीमेटली डेथ हे जिवो नेक्स्ट होची टॉलरेंस एडा सब थिला टॉलरेशन केमिति जदि टेंपरेचर इंक्रीज होची देन इंपैक्ट कोन होतला जदि हम टेंपरेचर कमी जाउची कोल्ड फ्रीजिंग टेंपरेचर जदि होची देन कोन इफेक्ट पकोची कोल्ड फ्रीजिंग टेंपरेचर रे गोटे था हार्डीनेस एटा बायो सॉरी बॉटनी पार्ट रे पढ़िबो तमे हार्डीनेस माने कोन नॉर्मली सर्वाइवल रेट पई कि ए जो गुडा का एक्टोथर्मिक एनिमल्स थांती ते जदि से माने कोन कहली एक्टोथर्मिक एनिमल्स माने टेंपरेचर बाहर चेंजेस हले तांको बॉडी टेंपरेचर चेंजेस होची किंतु जदि दैट एक्टोथर्मिक एनिमल undergoes some physiological and biological changes or characteristics and develop some characteristics they can tolerate that sub zero temperature सेटा होची हार्डीनेस कोन पई नै से माने दीटा जगह रे चेंज करथादी गोटे होची बाय डेवलपिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्रीजिंग टॉलरेंस कैपेसिटी से माने बढ़ी थांती एंड अनदर थिंग इज दैट they avoid the ice formation normally जेतरे टेंपरेचर ड्रॉप हुए आइस फॉर्मेशन हुए कोंती माने थिबो कि जे हमें गोटे जगह को ठंडा जगह को पळे जाउचंती कोन रक्त रे जो ब्लड रे हमर आइस फॉर्मेशन होउची से आइस फॉर्मेशन हबनी तले सेथि पई कोन करिया पड़िबो किछ हमको फिजियोलॉजिकल चेंजेस करिया को पड़िबो तो नॉर्मली बहुत सारे एग्जांपल अछि जेमति कि काइरोनोमस लार्वा हला किबा इंसेक्ट्स रहला किबा ह्यूमन आउ बॉलर स्पर्म्स हला एडा सब कोथरे केमिति सब रखि थांती कहला ग्लिसरॉल एक्ट एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो आउ सेमति का इंसेक्ट्स मानकर कोन होय ना आरबीसी रे हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल थाए तमे इंसेक्ट्स माने टिके लो टेंपरेचर भी पहुंची जांती तो these are the different type of हम कहबे एडाप्टेशन से धीरे धीरे नै चंती जहा पई कि से माने कोन करछन ना कोल्ड फ्रीजिंग टेंपरेचर को बियरेबल कर पाछन देन व्हाट इज सुपर कूलिंग माने हम जान जति व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द टेंपरेचर बिलो 0 डिग्री हम 0 डिग्री तळ को होजन तने आइस फॉर्मेशन होजे बट सुपर कूलिंग इज अ फेनोमेना वेयर बॉडी वाटर इज कूल बिलो टू द 0 डिग्री विदाउट द फॉर्मेशन आइस फॉर्मेशन होनी किंतु हमर कोन 0 डिग्री रे तळ को हमर टेंपरेचर मेंटेन हो जेटा केते बेल हबो ना जेतळ गुड एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड हम बॉडी रे थिबो एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड माने कोन करिवो दिस एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड्स विल गो एंड अटैच टू द सरफेस ऑफ द आइस क्रिस्टल देखो एठी गुड देइची फिगर 7.3 रे एठी कोन हिची जो व्हाइट गुडा कहले त वाटर मॉलिक्यूल माने आइस फॉर्मेशन होची त तळे जो गुडा को ब्लू कलर होची होची एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड माने ये कोन करची ना एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड गो एंड अटैच टू द क्रिस्टल माने एट द सरफेस ऑफ द आइस क्रिस्टल जदी माने धीरे धीरे जे अटैच हे जाउछन कोन बा एटा आइस फॉर्मेशन हे परिबनी तो आइस फॉर्मेशन पई कोन कंटिन्यूटी दरकार देखिथो गोटे छोटो बडला भी तो माने मूवी देखिथो ए जो गोटे सिस्टर माने कोन मूवी नथिबो कार्टून वाला ता हातरु कोन पाउथबो बाहर जाके बरफ बनउथबो भाबो जेंति पकोथबो किंतु ता मजरो एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड आसला माने ब्रेक हे गेला तारे बरफ बनिया पई गोटे कंटिन्यूटी दरकार आइस रो बा वाटर कंटिन्यूटी दरकार जदि कोठी हम ब्रेक करचंती ताले कोन होबो से आइस ता फॉर्म हे पाइबनी एटा होची एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड तो ये ग्लाइकोप्रोटीन गोटे पोटेंट एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड भले काम करे जेमति अंटार्कटिका फिश आमी जानछे 0 डिग्री रे बरफ हे जाउची तने भाबो -1.8 डिग्री सेल्सियस रे कोन होतो ऑब्वियसली बरफ ही रहउतबो ना किंतु अंटार्कटिका रे जो फिश अछि ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन इट कैन स्विम इवन इन द -180 डिग्री -1.8 डिग्री सेल्सियस
तो यही एंटीफ्रीजिंग कंपाउंड टा कौन करे ना आइस फॉर्मेशन हवा को दिएनी इवन इफ द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस देन adaptation जो कोई किलो थर्मस ऑर्गेनिजम्स माने अछंती से माने केमिति अडाप्ट करचंती माने तांको तो भी बंचिया को पड़िबो ना तांको सिना बॉडी सिना रेगुलेट करने थे माने किछ स्पेसिफिक एक्टिविटी करिया को पड़तबो किछ चेंजेस करिया पड़तबो तो ना सुनतिबो हाइबरनेशन इज द रेस्टिंग स्टेट फास्ट होची से कौन करती ना टेम्परेचर को जब से बियरेबल कर देन दे विल गो टू द रेस्टिंग स्टेट माने हाइबरनेशन माने जदि हमें विंटर टाइम रे हाइबरनेशन हुए जेमति कि को माने करंती फ्रॉग माने करंती हाइबरनेशन मींस विंटर टाइम रे जदि लो टेम्परेचर को से बियर कर पारनांती दे विल गो टू द रेस्टिंग स्टेट एस्टिवेशन हो जदि हायर टेम्परेचर को से जदि बियरेबल न कर पारते दे विल गो टू द एस्टिवेशन तो इटे माने लाभ कोन हुए गोटे तो तांको मेटाबॉलिक पाथवे ऑब्वियसली हमें सोइला हमर मेटाबॉलिक पाथवे स्लो हुए तो मेटाबॉलिक पाथवे स्लो होले तांको कोन करिया पड़िबो बहुत सारा एनर्जी तांकर बंचुची से एनर्जी बंचिले से माने कोन करिवे टेम्परेचर रेगुलेट कर परिबे आ गोटे कोन ना फिजियोलॉजिकल जो एबिलिटी अछि सेटा कोप अप धीरे धीरे करूची इंक्रीजिंग टेम्परेचर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन को पळे रेस्टिंग स्टेट को पळे गेले कोन ताकू कोन करिया पड़े ना डायरेक्ट एनवायरनमेंट से तो किछ कनेक्शन रखिया को पड़ेनी जोथि पे कि से माने कोन कहते एडिक्वेट हे जानती केमिति कोन बंचिबे नेक्स्ट होच हमर कोन करते ना बिहेवियरल एडजस्टमेंट देखिथिबो बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स अछंती से माने निज बिहेवियर चेंज करंती केमिति करबे बाय वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम जस्ट एग्जांपल होची मु कहि परिबी रैटल स्नेक जो अछि दैट इंक्रीज द इंफ्रारेड सेंस ऑर्गन इन हिज फेशियल पिट तारा कोन करबो ना फेशियल पिट रे से कोन करे ना जो इंफ्रारेड सेंस ऑर्गन अछि ता कैपेसिटी को बढ़े देले कोन हबो ना दैट इट विल एबल टू डिटेक्ट इवन ए स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस जदि स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस होची तन से डिटेक्ट कर दबो से अनुजे निजर एडजस्टमेंट करके से मने कर कोन जति हठात किना टेम्परेचर चेंज होची देन से जानि पारोनी तार डेथ हे जाउची जदि से छोटो टेम्परेचर जोठी बढ़िया स्टार्ट करची सेटा को डिटेक्ट कर दे परिबो कि ता पर स्पेसिफिक ऑर्गन माने गोटे स्पेसिफिक ऑर्गन अछि ता द्वारा से कोन करबा तो डिटेक्ट कर पाथो जदि स्पेसिफिक ऑर्गन द्वारा डिटेक्ट कर परिबो देन से गोटे सेफ प्लेस को पळेबो बा सेफ्टी पे कि देखिबो सिमिलरली जेमति कि अछि इंसेक्ट और रेप्टाइल्स माने से माने देखिबो बहुत सारा इंसेक्ट और रेप्टाइल्स माने कोन करथि बास्किंग टुआटा दिन सारा जो सकाळ सकाळ खरा होतो खरा पड़ी रहिथो कोन पे कि माने बास्किंग करंती जेति माने जो माने कोन मॉर्निंग रे जो सनलाइट को समय नै जंती माने जेति हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी में दरकार जेतेबे ड्यूरेशन नून टाइम रे दीबो टाइम जेतेबे हमर कोन टेम्परेचर कंसंट्रेशन बढ़ी जाय टेम्परेचर तो अधिक जाय लेकिन से माने बियर कर परंतनी से टाइम से आराम से जाय कि शेड रे रेस्ट कर परबे एटा भी गोटे प्रकार बिहेवियर चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस होची भासो कंस्ट्रिक्शन गोटे हुए आ भासो डायलेशन भासो कंस्ट्रिक्शन और भासो डायलेशन कोन जदी हमर ब्लड फ्लो जो होची बा ब्लड वेसल्स रे जो ब्लड फ्लोटा होची जदी हमर ब्लड वेसल्स रो डायमीटर हमें कमी दोचती ताले कोन हो ब्लड फ्लो कमी छिबो जदी ब्लड फ्लो कम होची देन दैट विल क्रिएट प्रेशर एंड इंक्रीज द टेम्परेचर तो जेते बेले छोट माने जेते बेले विंटर टाइम रे कोन हुए हम बॉडी जदी शीत लागथाय तो हम कोन हुए ना भासो कंस्ट्रिक्शन हुए ब्लड वेसल्स कोन करे ना तारो डायमीटर कमे देले कोन होबो ना प्रेशर बढ़िबो प्रेशर बोले आमे टिके बाहर रो एनवायरनमेंट सहित आमे नै जो माने को ऑर्गेनिजम्स कोई किलो थर्मस ऑर्गेनिजम्स ते कोप कर परबे इंक्रीजिंग टेम्परेचर होची जदि बहुत गरम होची से भासो डायलेशन माने दे विल इंक्रीज द ब्लड वेसल्स डायमीटर जदि बढ़े देबे देन कोन होबो हीट को से माने बियरेबल कर परबे आउ किछि ऑर्गेनिजम्स अछंती इवापोरेशन मॉइस्चर करके माने कोन करंती चेंजेस करंती आउ किछि थांती एंटी फ्रीजर बने की करथांती आ गोटे किछटा फिश और शार्क मन थांती हीट एक्सचेंजर थाय तांका पाकर हीट एक्सचेंजर कोन गोटे जस्ट एग्जांपल्स होची रेटिया मिराबिलिया ए जो तळे गोटे देखा जाउनी गोटे फिगर देची 7.4 ए गोटे देखो ऑर्गेनिजम दिची डॉल्फिन तार फ्लिपर रे थाय कोन कहलो रेटिया मिराबिलिया इज ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर मींस इट इज ए नेटवर्क ऑफ आर्टरी एंड वेन that close together that very close together and you just use the counter current for maintaining the heat exchange तो counter current mechanism को use करके heat exchange करके maintain कर पारथो जेमति इंसेक्ट्स हला इंसेक्ट्स मानु जदि हम कहबा कम टेम्परेचर जदि हम को 5 डिग्री सेल्सियस रे रखु चंती तन बहुत माने कोन होची शीत लागुथो ताको तो ताको किंतु तार जो इंटरकोस्टल मसल्स अछि बा तार फ्लाइंग मसल्स अछि फ्लाइट मसल्स अछि ताको एक्टिव होबा पई कि ताको नियर बाय 30 डिग्री सेल्सियस रो टेम्परेचर दरकार
तो से केमिति ताको करिवो देखिथिबो किछि किछि पक्षी शीत दिन ओडिया पूर्वरु हाथ गोड़ पूरा बॉडी टाको ही मूव करथे मूव कले कोन बा शिवरिंग कले कोन बा ना मूवमेंट पे ता बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करबो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करके 30 टाको पळे आसबो देन से माने फ्लाई कर परबे तो दीज आर द changes which has been taken by the poikilothermus then what are the changes taken upon by the homeothermus first होची heat production हीट प्रोडक्शन केमिति हुए बाय सिवरिंग सिमिलरली हमहु जब शीत लागु हमें कोन करतंती माने कोन हम बॉडी हाथ गोड़ कोन मूव करले किबा कुमति शीत दिन एक्सरसाइज करबो गरम लागिवो कोन पे जब हम मूव करछन कोन होची ना हमर काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी चेंज होची जति पे हमको गरम लागुची नेक्स्ट होची नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस एटा केमिति होबो बिना मूवमेंट करके केमिति थर्मोजेनेसिस होबो माने बको आडिपोस टिश्यू जोटा फैट अछि बॉडी रे सेटा मैमल मान को कोन करे हीट दिए शीत दिन रे तो आमे कोइ पारे कोन पे दिए ना adipose tissue is the site of it is the very rich vascularized and site of more mitochondria is there so it is the increase more concentration of mitochondria present in the case of adipose tissue and mitochondria is the site for most of the metabolic pathway especially metabolic pathway hocha amar beta oxidation kon hoba fat ro degradation hoba fat ro degradation le temperature release hoba sei temperature ko neki jone kon कर परबो जो लो टेम्परेचर अछि ता सहित कोप अप करके होय परबो देन आउट होची हीट लॉस ह्यूमन माने केमिति हीट लॉस करंती आइदर रेडिएशन करके छाड़ा बाहर की आ किछ ने इवापोरेशन करके नेक्स्ट होची बार्ड्स मान कर तो स्वेटिंग देखि जकी बार्ड्स मान कर हुए हबो हो नथिबो कारण ना ड्राई और इन्सुलेटेड स्किन अछि तो से मान कर कोन होय ना स्वेट ग्लैंड अछि तो से मान कोन करिवे ना स्वेट टाको कोन करती स्वेट फ्लूइड टाइप रो करके स्वेट ग्लैंड बाटे बाहर करंती जा फळे कि तंकर कोन होय ना हीट लॉस हुए पैंटिंग देखिथिबो कुकुर बाने जतर सोइथिबे देखिथिबो पूरा जीभ काढी की बॉडी टाको मूव करौथिबे तो सेटा कोन पैंटिंग करबा ब्रीथ जोरे ब्रीथिंग करबा तो सेटा कले कोन होय ना हमर हीट किछि ना किछि लॉस होची विदाउट द लॉस ऑफ सॉल्ट ग्लूटर मटरिंग देखिथिबो जो छोट छोट पारा माने थिबे तांकर थंट तळ पोर्शन सब बेले मूव करथिबो सेटा होछ हमर ग्लूटर एरिया वाइब्रेटिंग द ग्लूटर एरिया दैट इज द फ्लोर ऑफ माउथ दैट इज आल्सो मेथड ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर देन सलाइवा स्प्रेडिंग कोन देखिथिबो किछिटा रोडेंट्स और मार्सुपिएला अछंती सेमान गरम लागले कोन करबो सेमान कर तो बॉडी तो इन्सुलेटेड सेमान कोन आउ स्वेट बाहर करिवे सेमान कोन निज सालाइवा ने कि बॉडी सारा पूरा लगे देबे जीव द्वारा जेता टिके पवन होबा ताको शीत लागेबा ठंडा लागेबा हीट लॉस सेमिति करिके सेमाने हीट लॉस करंती आ गोटे हीट एक्सचेंज सेमति कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फेल ऑफ फ्लिपर जति देखिबो सेमानकर आर्टरीटा कवर हेकि थाए कोथरे वेन ने सेति पे किछटा एक्सचेंज हेताए ह्यूमन मानकर लिम्स रे जेमति देखिबो कि लिम्स पाई कि किछटा एक्सचेंज हेताए बर्ड्स मानकर लेग्स पाई कि जति गोटे बर्ड जाउछ स्विम करबा पाई कि जेता बॉडी टेम्परेचर अधिक अछि देन सेठी ताको तार लेग्स थ्रू रे किछटा बॉडी किछटा टेम्परेचर तार लॉस हबो बुझि पाइलो एति कि थिला कि तमर कोन टेम्परेचर माने कोन एनवायरमेंटल स्ट्रेस अछि ताको केमिति हमें रेगुलेट करबा नेक्स्ट अछि तमर एनवायरमेंटल सेंसिंग रिसेप्टर मींस बहुत सारा सेंसिंग रिसेप्टर्स अछि रिसेप्टर माने रिसेप्टर सेल्स अछि जो माने कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तमे कहि परिबो से माने कोन करछन ना डिटेक्ट करछंती आ कोन करछन ना स्टिमुलेट करछंती एम्प्लीफाई करछंती हमर कहाकू ना से जो जहा भी हम पाखरे से ओते कोनसी चेंजेस हैला बा कोनसी गोटे स्टिमुलस आसिला सेटा केमिति गोटे जने सेंस रिसेप्टर केमिति करूची बहुत टाइप रे हमर से माने कोन हे परिबो सिग्नल हे परिबो लाइट रे हे परिबो साउंड रे हे परिबो देन टेस्ट रे हे परिबो तो बहुत सारा अछि तो सेति पे कि हमर बेसिक तीनटा स्टेप अछि कोन signal detection, signal amplification and signal transmission. Signal detection means कि जदि कोनसी गोटे जगह हमको सिग्नल आसुची धीरे धीरे कोन होतबो ना से सिग्नल टा कमी जाउथबो बट आम बॉडी रे गोटे ऑर्गन माने जो सेंस ऑर्गन्स अछंती बा सेंसरी सेल्स अछंती से माने फर्स्ट डिटेक्ट करबे कि कोठो सिग्नल टा आसुची नेक्स्ट होची सिग्नल एम्प्लीफिकेशन जदि से माने तंग बा गोटे स्पेशलाइज्ड से जो पार्ट थिबो जोटा कि कोन करथबो एम्प्लीफाई करथबो व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एम्प्लीफिकेशन कारण जो सिग्नल टा आसुची सेटा जाय कि हमरो सेंटर रे पहुंचला लागु माने जोठी रेस्पॉन्स होबो सेति कि जाय रे पहुंचला लागु सेटा कमी जायथिबो तो धीरे धीरे कोन कोची ना से डिस्टेंस ट्रैवल करके आसुची तो सेति में से डिस्टेंस जो ट्रैवल करके आसुची तो एम्प्लीट्यूड टा नो कमी जाउ सेति में से माने कोन करबे ना ताको एम्प्लीफाई करबे बढ़ाई देबे बहुत 3-4 डिग्री बढ़ाई देबे तो से कोन होबा ना कि बेसी बढ़ाइबे जहा पर कि से तार माने कोन टारगेट सेल्स पाकू जाय परथबो देन ट्रांसमिशन ऑब्वियसली से माने कोन करबे जोठी जिबा कथा सेठी कि जिबे तो एठी गोटे फिगर देइथिबो देखो
ट्रांसडक्शन ऑपरेशन फास्ट ला डिटेक्शन देन एम्प्लीफिकेशन देन आ बाकी जो प्रोसेस वाला ट्रांसडक्शन डिटेक्शन जदि सिंगल सेल अच्छी से केमिति डिटेक्ट करबो जदि गोटे पॉपुलेशन ऑफ सेल अच्छी से केमिति डिटेक्ट करबो एटी पूरा देछि जदि गोटे सिंगल सेल हला सी फास्ट मॉडिफाई करबो देन फिल्टर करबो देन ताकू टर्निंग करबो करके ताकू बढ़ेबो सिमिलरली पॉपुलेशन ऑफ सेल भी हुए एम्प्लीफिकेशन केमिति करबे पॉजिटिव फीडबैक देबे फास्ट ताकू डिटेक्ट करबे कि कोठी अच्छी देन तारा एक्टिव प्रोसेस करके मेमोरी ने एनहांसमेंट करबे जो भी सिग्नल आसीथिबो देन ताको ट्रांसडक्शन में कोन करबो फास्ट माने एनकोडिंग करिवे कि को प्रकार रो माने सिग्नल आसीची देन ताको अडैप्टेशन करिवे देन जहां भी गेटेड वे चैनल थिबो ताको एक्टिव करके हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पास करिवे तब जोठी भी तार टारगेट सेल थिबो ताको पास करके तारो जहां भी रिस्पांस थिबो ताको देबे हैना एटी सब पाथवे अच्छी फर्स्ट आम डिटेक्ट करवा देन एम्प्लीफिकेशन करचंती देन आमर कोन होची ना जहां भी हमर प्रोसेस रहिला बाकी गुडाको सेडा को होची नेक्स्ट देखो केमो रिसेप्शन इज मेनली गिव information about the chemical environment to the neuron अच्छी यदि केमिकली किछि चेंजेस होची that will give signal to the chemical environment सॉरी केमो रिसेप्टर को दबा दी प्रकार केमो रिसेप्टर अछि कोन गोटे होची गस्टेटरी बा हमें कहबा ऑल्फैक्टरी कहि परिबा सॉरी गोटे होची गस्टेटरी आ गोटे होची ऑल्फैक्टरी गस्टेटरी माने होची टेस्ट ऑब्वियसली कोन केमिकल चेंजेस सब हमें टेस्ट कर भी जानि परिबा आ गोटे ऑल्फैक्टरी स्मेल यदि कोन केमिकल चेंजेस होची हमें स्मेल करके जानि परिबा कि कोडी कोन चेंजेस होची तो हस मेकानिज्म देखिबा देखो गोटे अछि फिगर 8.3 रो ए अछि ए देखो एठी कोन अछि ना एटा होछि हमरो केमो टेस्ट पाइकी तो एठी जो भीतर गोटा मझी रे अछि एटा होछि रिसेप्टर फॉर टेस्ट पाइकी अछि गस्टेटरी पाइकी तो ता साइड रे कोन अछि बेसल सेल अछि बेसल सेल्स कोन बेसल सेल्स आर द सेल्स which are the capacity to give rise to the new type of receptor cells and the supporting cells which help in the functioning of that receptor cells तो ए सब cells माने कोन करंती ना जो receptor cells कोन करे ना it will activate the apical membrane ऊपर देखा जाउची गोटे किछटा माने कोन लाइन स्ट्रक्चर ऊपर लिखा जाइथिबो देखो माइक्रोविलिया ऑफ एपिकल मेम्ब्रेन त जो सिग्नल ता आसिला सेटा फास्ट कोडी आसीबो जहा भी रिस्पांस आसिला एपिकल मेम्ब्रेन को आसीबो एपिकल मेम्ब्रेन को आसिला पर रिसेप्टर को पास हबो रिसेप्टर को पास हेले ये कोन करबो ना ये जो माइक्रोविलिया छिना इंक्रीज कर दे सरफेस एरिया को जेतु सरफेस एरिया इंक्रीज करबो इटे एम्प्लीफिकेशन काम होय करबो तर जहा भी सिग्नल आस्तिबो सेटा कोन हिजबो ता सरफेस एरिया बढ़ला माने हेलो हो ठीक अछि जेते बळे एटी जो रिसेप्टर सेल्स अछि ए रिसेप्टर सेल्स रो काम कोन ना फास्ट कोन बना जहा भी सिग्नल आसिला से सिग्नल कोन करबो ना फास्ट आसीबो एपिकल मेम्ब्रेन को सिग्नल कोठी आसीबो एपिकल मेम्ब्रेन को आसिला एपिकल मेम्ब्रेन में कोन अछि विलाई अछि माइक्रोविली अछि ऑब्वियसली माइक्रोविली रो काम कोन माइक्रोविली रो काम होछि इंक्रीज द सरफेस एरिया तो से कोन करबो ना जहा भी सिग्नल आसीबो ताको एम्प्लीफाई करबो जति कि आसीबो ता डबल ट्रिपल कर देबो तब से कोठी पास होबो तमरो रिसेप्टर सेल्स को पास होला माने नेक्स्ट सिग्नल तुमको कोठी जिवो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बट हियर द सिग्नल डज नॉट गो बाय द एक्सन एठी एक्सन दे कि तमरो जीवनी एठी केमिति जिवो बाय गिविंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल माने एटी कनेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट नथिबो एटी केमति जिवो एक्शन पोटेंशियल जेमति हमें पढिले एबे कोन छोडे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दबो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल मूव एंड reach that stimulus or the signal to the CNS then CNS रे कोन हबो डिटेक्ट करबो कि एटा को प्रकार रा टेस्ट बुझ पाइला तो टेस्ट केमति डिटेक्ट जे करा जाय एटी देखो 8.4 रो फिगर देखिबा एटी देखो बहुत सारा ट्रांसपोर्टर्स अछि है ना ट्रांसपोर्टर्स फर्स्ट जो ट्रांसपोर्टर ता अछि देखो गोटे Na+ ट्रांसपोर्टर ता अछि तो जदी इटा कोन करी ना फर्स्ट ट्रांसपोर्टर ता होछि फॉर द सॉल्टी स्टिमुलस माने हमें जदी किछि सॉल्टी खाइबा खाइ जंती ताले ऑब्वियसली जेते कोन थिबो NaCl रो कंसंट्रेशन थिबो देन हमें खाइ देले NaCl रो कंसंट्रेशन अछि NaCl वाटर रे मिसिला पर कोन बता डिसॉल्व होई कोन बनेबो Na+Cl- that Na+ will enter to the receptor cell अब एठी कोन अछि Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल अछि एठी कोन करबो नै जो लिगेंड गेटेड चैनल अछि एठी कोन करबो ना ये चैनल प्रोटीन ने के जिवो Na+ एंट्री करबो आ Na+ एंट्री करले कोन होय तमरा डीपोलराइजेशन एबे हम एते पढि के आसले डीपोलराइजेशन होबो then that depolarization gives signals to the CNS that the food we have eaten is salty in nature
बुझिपारला देन अच्छे सोर्स स्टिमुलस माने कोन सेम चैनल सेम किंतु एटा कोन हबा ना सोर्स हम जदी किछ गोटे सोर खाइ नउचंती देले कोन हबा ना हम बॉडी रे एक्सेस H+ कंसंट्रेशन आयन बढ़ी जबो जेतु एक्सेस H+ कंसंट्रेशन आयन बढ़ी जाउची देन दैट विल इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ K+ आयन बा K+ आयन जो चैनल टा इनहिबिट करबो K+ भीतर को जीवनी K+ जदी भीतर को न गला देन कोन हबो हाइट कौन कर जब के प्लस भीतर को जाऊनी ताले कौन हम हाइपर पोलराइजेशन पोलराइजेशन देन सेटा सिग्नल दबो कि तुमको एटा सोर्स स्टिमुलस अछि जदि हमें अलानाइन और स्वीट कंपाउंड्स किछि नउचंती तो तुम भल से जाई के जदि के कंफ्यूज होछ जीपीसीआर टिके देखि देबो जीपीसीआर कोन जीपीसीआर इज द लार्जेस्ट इट इज द लार्जेस्ट कहि परबो 7 मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबुटु बड़ ट्रांसपोर्टर अच्छी आउ एटा पुनी सरफेस ट्रांसपोर्टर इट इज द लार्जेस्ट 7 मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सेल सरफेस रिसेप्टर कोठी अछि ना कोड प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिबो तो जो जीपीसीआर माने कोन पे कोनते जीपीसीआर जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर हैला जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को जाय जी प्रोटीन कोन ना जी प्रोटीन गोटे प्रकार गोटे जीटीपी जंतु कहउजंती जी लिंक्ड प्रोटीन थिबो तार तीनटा सब यूनिट थे अल्फा बीटा गामा तो ये कौन हुए ना तुम देखि पाथुबो रिसेप्टर अच्छी गोटे ग्रीन कलर बॉक्स वाला देखा जाउची ए रिसेप्टरटा होची हमर जी रिसेप्टर बा जीपीसीआर पाख को लागे कि देखो जी प्रोटीन अच्छी जी प्रोटीन न तीनटा पार्ट थाए गोटे होची अल्फा गोटे बीटा और गोटे गामा तेबले अल्फाटा एमती फास्ट एमती का सहित लगी थाए जी प्रोटीन सहित लगी थाए किंतु जेतेबेले गोटे तमर लिगैंड आसिला लिगैंड इन द फॉर्म ऑफ कोन केमती आसी इन द स्वीट टेस्ट परिका आसी बा अर्जिनाइन किबा ग्लूटामेट फॉर्म रे आसी देन कोन हबो दैट विल एक्टिवेट द जीपीसीआर रिसेप्टर एक्टिव हबो देन सी कोन करबो ना जो जी प्रोटीन अछि जी प्रोटीन को सिग्नल दबो जी प्रोटीन को सिग्नल देले जी प्रोटीन ने तीनटा पार्ट थाए बा तीनटा सब यूनिट थाए कोन अल्फा बीटा और गामा सी कोन करबो ना से अल्फाटा से जी प्रोटीन को छाड़ी की आसी के कहा सहित लागि जबो एसिटाइल कोलिन सहित लागि जबो आ हियर द एसिटाइल कोलिन इज एक्ट एज ए इफेक्टर से का बळे काम करछि थी इफेक्टर पर का काम करछि तले सी जरा एक्टिव हो से कोन करबो ना एटीपी को कन्वर्ट कर देबो सीएमपी रे जेतले एटीपी को कन्वर्ट कर दोछि सीएमपी रे देन कोन होछि ना दिस लीड्स टू द क्लोज ऑफ K+ चैनल एंड देन हमें जानि परबा कि एटा होछि हमर स्वीट इन टेस्ट बुझपाला नेक्स्ट होउची तमरा कोन अछि बिटर कंपाउंड माने केमिति हबो जदि कोनसी बिटर कंपाउंड आसिला देन कोन हबो से सेम देखो किंतु एठी इफेक्टर अलगा देखो जीपीसीआर रिसेप्टर सेम सो जीपीसीआर रिसेप्टर अछि जीपीसीआर अलगा अलगा इफेक्टर पय काम करबो माने जदि से जीपीसीआर यदि लिगेंड गोटे आसी के लागिला देन दैट विल एक्टिवेट a different a specific effector यदि आ गोटे लिगेंड आसी के लागिला दैट विल एक्टिवेट a different effector त इफेक्टर को नेकी काम हबो त एटी कंफ्यूज हबो कि मैडम से गोटे जिंस लागु छि केमति अलगा अलगा होछि तो जीपीसीआर जब तुम पढिबो त बुझि पारिबो जाय कि सेल सिग्नलिंग रे अछि तो जीपीसीआर कोन त ना बहुत सारा लिगेंड स्पेसिफिक थान से जदि गोटे लिगेंड लागिला से ओनली से तार जो इफेक्टर थिबो ताको एक्टिव करबो जेमति देखो आमे यदि स्वीट टेस्ट देखितिले गोटे जिंस एक्टिव हेतिला एबे बिटर कंपाउंड देखो बिटर कंपाउंड भी से जीपीसीआर आछि देखो किंतु कंपाउंड जो आछि अलगा आछि तो जीपीसीआर एबे कोन करछि ना ताको कोन करला एक्सेप्ट कला से बिटर कंपाउंड रो जा भी थिबो ताको एक्सेप्ट कला पर कोन करबो ना जी प्रोटीन ता काम करबो जी प्रोटीन एक्टिव होबो देन अल्फा टा कोन करबो जी प्रोटीन को छाड़े के जाई कास्ता लागबो पीएलसी हियर पीएलसी इज एक्ट एज ए योर इफेक्टर पीएलसी इज योर phospholipase C then phospholipase C कौन करिवो ना phosphatidyl inositol 4,5 डाइफॉस्फेट को बाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देबो phosphatidyl inositol 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट INSP P3 and this leads to increase the concentration of Ca2+ बा कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ेबो तो कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ोची then that will increase the एबे पढ़ी के आछन सिनाप्सिस रे यदि कैल्शियम रे कंसंट्रेशन बढ़ोची देन दैट कोन करबो न्यूरोट्रांसमीटर रे कंसंट्रेशन बढ़ेबो न्यूरोट्रांसमीटर कंसंट्रेशन बढ़ेले सी हेल्प करबो सिग्नल पास करबा पई बुझ पलो आ गोटे मु छाड़ देली देखो गोटे अछि डिटा अछि जे स्वीट आर्जिनिन ग्लूटामेट अछि सेरा कोन करबे ना
स्पेसिफिक था जदि अलानाइन स्वीट कंपाउंड सहित अछि जदि अलानाइन अमीनो एसिड जदि रहिछि देन सी कोन करबा ना जी प्रोटीन रिसेप्टर को एक्टिव करे जोटी कि तमर कोन एडेनिल साइक्लेज एक्ट करे तमर इफेक्टर परिका किंतु जदि तमर स्वीट सब्सटेंस अछि त अर्जिनिन एंड ग्लूटामाइन अछि देन सी कोन करबा ना एक्ट एज स्टिमुलस एंड एक्टिवेटेड नॉन स्पेसिफिक केटान सिलेक्टिव चैनल तो सेठी कोन हमरा किछटा केटान में पॉजिटिव आयन भीतर को आसीबो तटा सिग्नल दबो कि एटा जोटा खाइछो सेटा जोटा स्वीट सब्सटेंस जोतरे कि अर्जिनिन और ग्लूटामेट अछि से अनुଯାयी कि हम ब्रेन जान नब कि आमे को प्रकार खाइबा खाउछंती बुझ पाइला नेक्स्ट देखो ऑल्फैक्टरी अच्छी ऑल्फैक्टरी रो देखो गोटे फिगर सही सेम फिगर 8.3 रो बी गोटे फिगर अच्छी सी गोटे फिगर अच्छी तो एटी कोन होछि ना बी फिगर देखो गोटे डायग्राम देछि सी रे देछि बी टा जोटा देछि सेटा होछि इंसेक्ट मानकर आ सी टा जोटा देछि सेटा होछि ह्यूमन मानकर किंतु मोस्ट ऑफ द तमे देखिबो पार्ट्स गुडा को समस्त सेम ही अछि या पाखरे अफरेंट एक्सन अछि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स अछि इनर सेगमेंट अछि सिलियरी सेगमेंट अछि आउटर सेगमेंट अछि सब जिंस ऑलमोस्ट सेम अछि किंतु माने सेमिति काई पास होबो फर्स्ट सिग्नल आसीबो सिग्नल कोन करबो फर्स्ट से म्यूकस लेयर देके आसी के नाजल कैविटी को एंटर करबो देन आउटर मेम्ब्रेन जहाँ भी तमर सिलियर थिबो ताको एक्सेप्ट करबो सिलियरी मूवमेंट होबो देन भीतर को पास होबो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को जिवो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर गला परे विथ द हेल्प ऑफ एफरेंट एक्सन एटा कोठी जिवो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जिवो तो से अनुसार हमें जानि परबे कि हम पाखरे को प्रकार रो स्मेल आसुची बुझ पाला कि एटा हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द गोस्टेटरी बट टेस्ट बर्ड्स और केमिते अलगा कहितरी ना टेस्ट बर्ड रे कोन हुए एक्शन पोटेंशियल माने डेवलप हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बा वोल्टेज रे ट्रांसफर हे जागे तुमको से सिग्नल टा सीएनएस जाए आ एठी केमिते जिवो अफरेंट न्यूरॉन ने देखो तळे एठी अफरेंट न्यूरॉन अछि बुझ परछो आ सेठी देखो नर्व फाइबर अछि नर्व फाइबर से कोन करबो तुमको एक्शन पोटेंशियल क्रिएट दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द टेस्ट बर्ड एंड द ऑल्फैक्टरी एठी अछि तमर से ऑल्फैक्टरी रो देखो एठी सेही जिंस ही अछि तळे देखो बहुत सारा ऑल्फैक्टरी नर्व्स गुडा का जाईची लाइक जाई कि से नाजल कैविटी पाखर अछि तो सेउडु से माने कोन करिवे ना सिग्नल ने की पास करबे सीएनएस को नेक्स्ट देखो होची मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग mechanism of hearing केमती हुए धर बाहर रो किछ छोटे साउंड हैला देन दैट साउंड विल बी कलेक्टेड बाय आवर ईयर पिना हम ईयर पिना कोन करबा ना से साउंड को फर्स्ट कलेक्ट करबा एंड दैट साउंड विल बी पास थ्रू द ऑडिटरी एक्सटीरियर ऑडिटरी कैनल देखि से साउंड ता ईयर पिना रो पास हे कि जिवो जें कि ऑडिटरी कैनल पाखर गोटे देखिबो गोटे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अछि बा ईयर ड्रम अछि तो जें कि जो भी वाइब्रेशन आस्तिबो पास हे कि जाइथिबो ऑडिटरी कैनल ले जांकी कोठी माने लागिबो स्ट्राइक करबो से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने गोटे ड्रम परिका गोटे ड्रम रे हमें बीट करे कोन होय वाइब्रेशन हुए ऑब्वियसली एठी गोटे साउंड जो जाईची सेटा कोन बे कोनती जो हाई साउंड सुनुचो बा कोन से डीजे पाखे यदि सुनुचो ताले ईयर ड्रम ऊपर इफेक्ट करे कारण हम ईयर ड्रम पाखरे भी गोटे माने तार गोटे लिमिट अछि कि सेति के वाइब्रेशन को बियरेबल करो तमे ताठ भी अधिक माने कोन करबो यदि साउंड पाखे जाई रहइबो कोन ईयर ड्रम ता रप्चर करबो सेति हम कोनती कि बेसी साउंड पाखो जाई रहइया कथा नै बेसी वॉल्यूम रो गीत सुना कथा नै ईयर ड्रम जति के बियरेबल सेति के ही कर पाइबा ताले कोन होबो से एक्सटीरियर ऑडिटरी चैनल बाटे देखि जिवो जाई कहा पर स्ट्राइक करबो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्ट्राइक करबो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्ट्राइक करबो देन कोन होबो ना वाइब्रेशन होबो पूरा का पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशन होबो अच्छा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सहित लागी की गोटे कॉइल्ड ऑसिकल्स अछि साइड रे से कोन करबो ना से ऑसिकल माने हेल्प रे जो स्टेप्स अछि हमर ईयर रे थिबो कोन कोन इन कॉस्मैलेस स्टेप्स अछि से स्टैप्टेस्ट्रो फुट प्लेट रे जाई कि बाजिबो बुझ पाला जो सिग्नल टा असले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशन होची सेही वाइब्रेशन कोन करबा गोटे कॉइल्ड तार भलिया अछि ता ना होची ऑसिकल से ऑसिकल लेके जाई कहा ऊपर लागिबो जो जो स्टेप्स अछि स्टेप्स रो प्लेट फुट प्लेट अछि ता ऊपर लागिबो जेतर स्टेप्स रो फुट प्लेट रे लागिबो देन स्टेप्स रो कोन करबो ना वाइब्रेशन पाई कि मूवमेंट करबो बा मूवमेंट इन द step foot place take place and due to this movement in the step foot place it will cause pressure change in the cochlea कोन एठी देखो गोटे cochlea स्ट्रक्चर देछि देखो गोटे coil टाइप रो गोटे स्ट्रक्चर अछि नला cochlea रे अछि हमरो labyrinthine fluid रे कोन होबो ना गोटे प्रेशर मेंटेन होतबो तमे कोन कलो ना एपटे वाइब्रेशन पाई कि से प्रेशर चेंज होबो ड्यू टू द चेंज इन द pressure of the labyrinthine fluid present in the cochlea it will cause the movement of बेसिलर मेम्ब्रेन ई कोन करबो ना बेसिलर मूवमेंट रो एठी अछि देखो
बेसिलर मेम्ब्रेन कौन करिवो मूवमेंट करिवो जेतले बेसिलर मूवमेंट रो देखो कॉक्लिया देखाला कॉक्लिया रो चेंजेस हैला प्रेशर सी कौन करिवो ना सी जो प्रेशर चेंज पाई के बेसिलर मेम्ब्रेन कौन करिवो ना मूवमेंट करिवो ड्यू टू द चेंज इन द बेसिलर मेम्ब्रेन ड्यू टू द चेंज इन द और मूवमेंट इन द बेसिलर मेम्ब्रेन इट विल कॉज स्टिमुलस एठी कोन हबो स्टिमुलस दबो हेयर सेल को हम ईयर भितरे हेयर सेल्स अछंती एठी तमर कोन हबो ना हेयर सेल्स गुडा का एक्टिव हेबे एंड दे हेयर सेल्स गुडा अछंती कोठी ऑर्गन ऑफ कॉटी रे अछंती एठी देखो ऑर्गन ऑफ कॉटी थिबो ऑर्गन ऑफ कॉटी रे तमर अछि हेयर सेल्स कोन हबो ना मूव हो मसाज करबो बा स्टिमुलेट हबो तो तार स्टिमुलेशन पे कि कोन हबो ना जो मैकेनिकल एनर्जी जाइतिला मु कहितिला आउट के पूर्व मैकेनिकल गेटेड चैनल तो सेठी कोन हुए ना मैकेनिकल गेटेड चैनल ले कोन हुए जेंति कि गोटे टेंपरेचर चेंज हैला साउंड हैला टच हैला दे एनी चेंजेस इन द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस दे विल एक्ट एज ए सिग्नल तो जो मैकेनिकल एनर्जी रो जो सिग्नल टा आसीतिला सी कोन करबो हेयर सेल एक्ट एज ए ट्रांसड्यूसर माने फाइनली जी चेंज करे तो हेयर सेल एक्ट एज ए ट्रांसड्यूसर एंड इट विल चेंज द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स ये कोन करबो इलेक्ट्रिकल इंपल्स रे चेंज कर देबो एंड दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल हेल्प इन ट्रैवल दिस इंपल्स टू द ऑडिटरी नर्व भितर जो ऑडिटरी नर्व अछि ऑडिटरी कैनल अछि ता बाटे ट्रैवल करके ताको पठेबो सिनेस को देन आमे कोन कर परछन ना हियरिंग कर परछन एतिके सब प्रोसेस रे आ एटी कोन होछि ना मैकेनिकल गेटेड चैनल एक्टिव होछि ए मैकेनिकल गेटेड चैनल एक्टिव किए करोछि हेयर सेल्स करोछि हेबे हेयर सेल्स को आमे कोन कहबा ट्रांसड्यूसर हला नेक्स्ट होछि तमर अछि एठी मेकानिज्म ऑफ विजन तो छोटो आमे पढि के आछंती फिजिक्स रे बेटा पढिथिबो मैम केमती से को जो यूस्टाचियन ट्यूब रो ता कामटा कोन कोटा यूस्टाचियन ट्यूब यूस्टाचियन ट्यूब से ईयर रो डायग्राम रे अछि कोडी कहला अपूर्वटा ईयर रे हां अपूर्वटा एटा ए हाँ ईयर रो हाँ हाँ डायग्राम रे हाँ अछि सेटा भी आई थिंक मूवमेंट ही करौथबो से देखो स्टापेस रो बेसल प्लेट रे ही लागि छि सेटा स्टापेस देखा जाउछि भीतर अछि आगे आगे कॉक्लिया रे ही लागि छि से भी से प्रेशर चेंज रे ही हेल्प करथबो कॉक्लिया रे लैबिरिंथियल फ्लूइड थिबो से भी सेही थरे ही हेल्प करथबो ठीक है देखि दबो हैला मु बैलेंसिंग रे कॉक्लिया और ऑर्गन ऑफ कोटी दीटांग काम करे हाँ हमर जो हाँ कॉक्लियर रे पोस्चर तमर बैलेंस रे प्रेशर चेंज हबो हाँ कॉक्लियर रे तमर प्रेशर चेंज हबो आउ ऑर्गन ऑफ कॉटी रे कोन हबो ट्रांसड्यूसर प्रकार काम करिवो हेयर सेल आउ एठी कोन होछि ना मैकेनिकल गेटेड चैनल एक्टिव होबो सेति पय कि तमर होछि मैकेनिकल एनर्जी ता कन्वर्ट होइछबो इलेक्ट्रिकल इंपल्स रे हैला नेक्स्ट होछि मेकानिज्म ऑफ विजन में कोन होछि ना देखो फर्स्ट होछि लाइट ता पास करछि हमरो ओटे आइरो ट्रांसपेरेंट लेयर अछि सेटा होछि कॉर्निया दैट ट्रांसपेरेंट लेयर हेल्प्स इन रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट जा भी लाइट आस्तबा ताको रिफ्लेक्ट करके भीतर को नबो देन पाखरे देखो अछि गोटे एक्वस ह्यूमर सेटा गोटे मेंटेन करे प्रोटेक्शन पय भी तमे कहि परिबो को जदि कॉर्निया ता पूरा लागि कि थांदा कोन हितन जदि किछ चेंजेस हेतन तो डायरेक्ट जाके लेंस ऊपर इफेक्ट पके थांदा तो एक्वस ह्यूमर अछि जेटा ट्रांसपेरेंट अछि तो जहाँ भी कॉर्निया रिफ्लेक्ट करिवो से वाटे पास हेकी पळेबो लेंस पर्यंत देन देखो इरिस अछि इरिस इज योर कहि परबो कलर एडजस्टमेंट करे बा एटा गोटे कलर पिगमेंट करे कलर विजन दिए नेक्स्ट एठी सिलियरी मसल्स अछि साइड रे सिलियरी मसल्स कोन करे ना एडजस्टमेंट ऑफ द जो ब्राउन कलर देखा जाउनी एटा होछि तमर सिलियरी मसल कोन करे एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस कि लेंस केते केमती एडजस्ट हबो केमिति हबो कि बाहर जेमती हमें पढिथिबो फिजिक्स रे बाहर जरो जदि कोन फोकल लेंथ पूर्वरु अछि जदि गोटे इमेज जदि फोकल लेंथ भीतर अछि तने जदि डिफरेंट डिस्टेंस रो अछि देन एडजस्टमेंट के करबो लेंस करियो तो सेही एडजस्टमेंट सिलियरी मसल द्वारा लेंस एडजस्टमेंट करे देन कोठी पढिबो तमरो से इमेज टा रेटिना रे पड़िबो रेटिना रे हेल्प इन द इमेज फॉर्मेशन आ रेटिना बहुत ही वास्कुलराइज्ड सेति ब्लड वेसल्स अछि नर्व अछि आ रेटिना रे ही कोन करे ना से जो नर्व इंपल्स टा को पास करे दिए ब्रेन को आ जहा पे कि हमें विजन कर परंती हमें देखि परंती आ एठी आउ तार जो स्क्लेरा अछि स्क्लेरा होछि हम आखि रे जो व्हाइट पोर्शन टा अछि स्क्लेरा हेल्प इन द प्रोटेक्शन लेंस तो जानिलो एडजस्टमेंट फाइन एडजस्टमेंट करे कि ठीक से कोन करबो ना जो जो जहा भी माने ऑब्जेक्ट ता थिबो तार इमेज ता हमर रेटिना ऊपर पडुथबो सेमति का एडजस्टमेंट से करथाय नेक्स्ट देखो ए जदि हम एटा देखिबा
कोड़ा कहला आ गोटे फोबिया अछि फोबिया का फोबिया इज अ पार्ट ऑफ रेटिना व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ ओनली द कोन सेल एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ शार्प इमेज कॉर्निया रे दी प्रकार जो रेटिना अछि सेठी बहुत प्रकार सेल्स थांती जेमति कि रॉड सेल्स और कोन सेल्स रॉड सेल्स कोन रॉड सेल्स होचंते लाइट सेंसिटिव एंड दे डू नॉट डिटेक्ट एनी टाइप ऑफ कलर माने हमको ब्लैक एंड व्हाइट माने हमें जदि हमें अंधार अछि देन सेटा एक्टिव हबो कोन सेल्स कोन दे आर नॉट लाइट सेंसिटिव से मैंने कौन करेंगे ना हेल्प कर हमको विजन करिया पे ताले फोबिया एमिति पार्ट हैला फोबिया एमिति पार्ट होची कहार रेटिनार जोटी के केवल तमर कोन सेल्स थिबे एंड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ शार्प इमेज तमे हे टाइम रो शार्प इमेज बा पर्टिकुलर विजन हमें सेई टाइम रो देखि परिबा नेक्स्ट एठी अछि हमर कौन देख गोटे फिगर अच्छी देख ए फिगर रे कौन कौन अच्छी फर्स्ट देख जो सेल्स गुड़ाक अच्छी डिफरेंट सेल्स रॉड सेल्स कोन सेल्स ये सब सेल्स गुड़ाक अच्छी से सेल्स रो तो सेटा को हम कहबा आउटर लेयर्स ता तळु को कोन थाए ना हमर किछटा प्रकार न्यूरॉन्स थांती जेंति बाइपोलर सेल्स रहला बाइपोलर न्यूरॉन तमे पढिथिबो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन बाइपोलर हैला यूनिपोलर हैला तो एटी बाइपोलर न्यूरॉन अच्छी ता तळु को अमेरिकन सेल्स अच्छी एगुडा सब को कहନ୍ତି ना जो सिग्नल ता से दियति एगुडा हेल्प करନ୍ତି ट्रांसफर करबा को कोठी ना गैंग्लियन ऑफ द सेल्स को देन गैंग्लियन ऑफ सेल्स को कोठी जीवो ऑप्टिक नर्व को देन ऑप्टिक नर्व डायरेक्ट तमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जीवो तने एई सब जिंस गुडा को रहइला जो एमने कोन करिवे ना जहां भी सिग्नल हमको तमर रोड सेल और कोन सेल दोतबे दीज आर हेल्प इन पासिंग दैट सिग्नल टू द ऑप्टिक नर्व और ऑब्वियसली ऑप्टिक नर्व को गला माने तुमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जीवो जहां भी ऑप्टिक नर्व जोडी माने कंट्रोल करछि देन वी आर एबल टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट एठी आगोटे अछि देखो ये देखो डायरेक्ट जाओ ए फिगर को तो ये कौन हुए ना मेकानिज्म कौन अच्छी ये जो रॉड सेल्स और कोन सेल्स अच्छी तांको पाखे कौन था ना बहुत सारा आउटर लेयर्स ऑफ द रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स हैविंग रॉड स्पिन देखो एटी भी रॉड स्पिन जो अच्छी इट इज एक्ट एज ए तुम कहबो एटी भी तुमको जीपीसीआर अच्छी तुम एमिति भाबनी कि जीपीसीआर केवल गोटे जगह हेल्प करछि जीपीसीआर बहुत जगह हेल्प करे एठी एमती मेकानिज्म ऑफ हियरिंग रे अच्छी मेकानिज्म ऑफ टेस्ट रे अच्छी तने जीपीसीआर एमिति गोटे मेमोरी माने कोन रिसेप्टर मेमोरी तो तारो कोन थाय ना लिगेंड वाइज इफेक्टर चेंज हबो तो ये कौन अच्छी ना रॉड स्पिन अच्छी कोठी आउटर लेयर ऑफ रॉड और कोन सेल ले तो रॉड स्पिन कौन ना रॉड स्पिन होची तीटा जिंस को नै खेची 11 शीस रेटिनल आउ ऑप्सिन आउ 11 शीस रेटिनल को मिसे की रॉड स्पिन हिची तो कौन होय ना जेतबे लाइट आसे लाइट एठी तुम कहि परबो कोन बळे काम करछि गोटे स्टिमुलस पर काम करछि लाइट आसिला माने कोन हबो ना जो 11 शीस रेटिनल आउ ऑप्सिन अछंती तांकर ब्रेक हबो ब्रेक हे की ऑप्शन ता रिमूव हे जिवो जोड़ा कि हमें कहि परबा ऑप्शन जाय कि जीपीसीआर लागिवो देन कोन हबो 11 शीस रेटिनल जोटा अछि से चेंज हे कि 11 ट्रांस रेटिनल हे जिवो बुझ पाइला आइसोमराइजेशन है कि 11 सिस रेटिनल ट्रांसफर हो 11 ट्रांस रेटिनल ले और जो लाइट प्रेजेंस रे आ गोटे कोन होची ना ऑप्शन ता बाहर जाउची ऑप्शन ता बाहर जाय कि कहा को एक्टिवेट करबो जीपीसीआर को जेमिति हमें सेठी देखुथिले जदी सोर टेस्ट होची कि स्वीट टेस्ट होची जो अलानाइन होला त जेटा रे कहा को एक्टिव करथला जीपीसीआर को सिमिलरली एठी तमरो कोन होची ना ऑप्शन एक्ट एज लेगेंड टू एक्टिवेट द जीपीसीआर एंड केमिति ऑप्शन केमिति एक्टिव होची सेटा लाइट प्रेजेंस रे एक्टिव होची बुझ पाइला माने जति कहि परबो रोड स्पिन कंडीशन ता होची इनएक्टिव बट डार्क कंडीशन रे रोड स्पिन आ जति एक्टिव होची देन हमें कहि परबे कोन होची रोड स्पिन सॉरी ऑप्शन ता बाहर जाउची जीपीसीआर एक्टिव होला देन कौन होबा जीपीसीआर एक्टिव हे गला माने सी कोन करबो ना ट्रांजैक्शन करबो जी प्रोटीन को एक्टिव करबो जीपीसीआर एक्टिव होला सिमिलरली जी प्रोटीन को एक्टिव कले कोन हबो जी प्रोटीन जो तीनटा पार्ट अछि अल्फा बीटा गामा अल्फा बाहरी आसीबो जेन का सते लागिवो इफेक्टर सहित एठी इफेक्टर किए पीडीई phosphodiesterase is act as a effector in the case of visualizer effector होच तमरा phosphodiesterase तो phosphodiesterase कोन करे ना उल्टा काम करे देखि तो सब एटीपी रु हमर कोन होतला सी माने कोन सीजीएमपी होतला कि मा जीएमपी होतला तो कोन सेकेंडरी मैसेंजर एटीपी रु बनउतला एठी ये कोन करबो ना phosphodiesterase ये कोन करबो कहला सेकेंडरी मैसेंजर को कमेबो माने सीजीएमपी को कन्वर्ट कर देबो जीएमपी रे तने हमर कोन होछ ना सेकेंडरी मैसेंजर कंसंट्रेशन कम होची जेमिति जेमिति हमर सेकेंडरी मैसेंजर कंसंट्रेशन कमेबो सेमिति कोन होबो ना हमर Na+ चैनल क्लोज हे जिवो Na+ चैनल यदि क्लोज हे जिवो तने Na+ रो एंट्री हबनी Na+ यदि एंट्री न होची तने कोन हाइपर पोलराइजेशन हम पढिथिले माने पका हाइपर पोलराइजेशन ने कोन होतला
closing of the inactivation gate of the Na plus voltage gated channel माने Na plus रो entry होउनी ताले एटी कोन होची आ Na plus रो entry होउनी Na plus entry होउनी माने hyperpolarization होची then that hyperpolarization जेते हे जिवो that will stimulate the rod and cone cells ताकू rod और cone cells रो जोटा synapse थिबो माने synapse माने बुझ पाछो गोटे सेल रो जेते पढी के आसले गैप जो रहउची एबे पर देखिले गोटे फिगर रे गोटे सेल अछि ता तळको बाइपोलर अछि तो सेठी कोन माने सिनाप्स पाखे जेमति फर्स्ट ए सब हाइपर पोलराइजेशन कोडी क्रिएट होला रॉड सेल्स ऑफ कोन सेल ता तळको कोन अछि तमरो बाइपोलर सेल्स तो सी कोन करबो ना रॉड सेल्स ऑफ कोन सेल सिग्नल दे देबो बाइपोलर सेल्स को देन बाइपोलर सेल्स तळको तळे कोन थिबो अमेरिकन सेल्स अछि किबा तमरो ऑप्टिक नर्व अछि देन अल्टीमेटली तम कहि परबो जो सिग्नल ता हाइपर पोलराइजेशन रा क्रिएट हेतला रॉड सेल्स ऑफ कोन सेल्स ता ऑप्टिक नर्व को जाउछि देन ऑप्टिक नर्व रे विजुअलाइजेशन हो and visualization is occurred due to the decrease in the concentration of CGMP which will leads to cause the inactivation of the Na plus channel and that will cause the hyperpolarization पाई कि तमरो सिग्नल ता आसुची ऑप्टिक नर्व पाखु आसला माने एटा विजुअलाइजेशन करूची बुझिला मने करो एबे लाइट नाही ताले कोन हबो उल्टा हबो CGMP जोड़ा अछि तार कंसंट्रेशन बढ़िबो माने एटी फॉस्फोडाइएस्टरेज रो आ स्टिमुलेट हे परिबनी फॉस्फोडाइएस्टरेज इनएक्टिव हबो एटी कोन गुआनाइलेट साइक्लेज भी गोटे तमरो कोन इफेक्टर सी जोड़ा एक्टिव हबो सी कोन करबो CGMP लेवल बढ़ाइबो बाय कन्वर्टिंग GMP टू CGMP लेवल बढ़िला माने कोन हबो ना तमरो obviously जा जा सब हेतिला तार उल्टा हे जिवो ऑप्शन बाहर जिवो जी रिसेप्टर बाहर जे कोड लागि जिवो तमर आउथर री आइसोमेराइजेशन हबो जो गुडा का सब 11 ट्रांस रेटिनल हेतिला 11 सिस रेटिनल हे जिवो देन 11 सिस रेटिनल जे का री असेंबल करबो ऑप्शन सहित देन तमर प्रोडक्शन बनबो सेटा अछि तमर डार्क कंडीशन बुझि पाइलो तुमको डार्क कंडीशन न पड़े तुम पढ़ी परबो विजुअलाइजेशन केमति होची तुमको सेटा खाली लिखबार अछि कि विजुअलाइजेशन केमति होची को सेल इन्वर्ट होची केमति ट्रांसफर होची को जीपीसीआर एक्टिव होची फैक्टर कोन को माने फेज रो होची जोटा कि हाइपर पोलराइजेशन ओके देन होची इकोलोकेशन कोन इकोलोकेशन होची जेमति केला बैट आउ डॉल्फिन दे एक्सिबिट्स दिस इकोलोकेशन मींस दे एमिट द अल्ट्रासोनिक क्राइस माने गोटे साउंड प्रोड्यूस करंती इन द केस ऑफ बैट the echo detector cells present in the case of bat brain आउ dolphin case रे हम देखिबा तार nasal sac रे अछि यार कोठी अछि कहलो ए जो यार अछि ब्रेन अछि कार bat ro in the case of dolphin देखो तार nasal sac रे अछि nasal sac which produce the sound through the external of nostril से कोन करबे ना nostril कोन करबे ना से sound गुडा बाहर करले that will help in various ways कोन करो capture the prey आउ हेल्प इन नेविगेटिंग इन द डार्क रे समय केमिति मूव करिवे डार्क तो किछ देखा जाउ नथिबो ना तो से कोन करिवे ना इकोलोकेशन माने देबे रिलीज करिवे इकोलोकेशन रिमूव करले तो आगर जदी कि आसुथबो ताले कोन हो इकोलोकेशन तो तांको आड़ को उल्टा रिटर्न आसीबो तन समय जानि परबे कि आगर किछुटे अछि से अनुसार समय नेविगेट कर पाइबे प्रे पे भी से सेम रूल आ गोटे कोन कर परबे ना दे कैन हियर एंड गोस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल्स जदी कोनसी तांको पे किछ ऑब्स्टेकल अछि से माने सेही प्रोसेस रे भी डिटेक्ट कर परबे बुझ पालो नेक्स्ट तमरो चैप्टर अछि क्रोमो रिसेप्टर हला क्रोमेटोफोर्स कोन क्रोमेटोफोर्स आर द सेल तुम कहि परबो सेल व्हिच आर हैविंग द कलर पिगमेंट जो मन पाखरे कलर पिगमेंट अछि से मन कोन करछन ना जो भी ऑर्गेनिजम्स थिबे ताको से कलर देबे बा कोड से टिंट देबे तो सेटा केमिति होय जदी 9.1 टेबलटा देखो जदी इन द केस ऑफ क्रोमेटोफोर डिफरेंट टाइप अछि मेलानोफोर अछि जैंथोफोर अछि मेलानोफोर्स कोन एनिमल पिगमेंट होछि मेलानिन जेकी कलर इंपैक्ट होछि ब्राउन और ब्लैक एटा तुम पढिथिबो कोथरे जेनेटिक्स रे मल्टीपल ना कोथरे एटा मल्टीपल आले नै पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जा पाखरे जति कि थिबो कोन आली से जे ना कलर बोलछि ताले कोन बोलछि तांकर मेलानिन बोलछि मेलानिन माने मेलानोफोर्स अछि सेठी सेटा होछि मेलानिन दोछि जोथि पे कि तमरो कोन होछि ना कलरटा ब्लैक सॉरी ब्राउन और ब्लैक आछि जते जते मेलानिन कमिबो सेते कलर कोन हो फेड करके आसीबो जैंथोफोर्स कोन ना कोठी अछि ना ये होछि येलो कैरोटिनॉइड्स जेरा कलर येलो दबो एरिथ्रोफोर्स रेड कैरोटिनॉइड रेड कलर दबो लिकोफोर्स गुआनाइन एरा एनिमल पिगमेंट जेटा कि व्हाइट कलर दिए सियानोफोर्स ब्लू कैरोटिनॉइड ब्लू कलर दबो एंड इरिडोफोर्स नो पिगमेंट केवल से लाइट सेंसिटिव जदी लाइट रे अछि देन से सिल्वर कलर आसीबे जदी लाइट नै देन दे
सेंसिटाइज किसी भी कलर देबे देन यूनिसेलुलर क्रोमेटोफोर्स माने कोन यूनिसेलुलर क्रोमेटोफोर्स माने तो क्रोमेटोफोर्स विल बी फिक्स्ड टू द गोटे ही सेल रो आउटलाइन को फिक्स्ड हेतिबे माने जेतबे सिग्नल आसीबो से माने आउटलाइन को पळेबे सेल रो तो सिग्नल छाडी जिवो से माने भीतर को पळासबे से अनुसार से माने कोन कहते ना क्रोमेटोफोर कलर चेंज कराते नेक्स्ट कलर चेंज दी प्रकार हे परिबो गोटे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रे हे परिबो गोटे फिजियोलॉजिकल चेंजेस रे हे परिबो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कोन कंसंट्रेशन बढ़िबो माने कर क्रोमेटोफोर नंबर एटा बढ़ि जिवो चेंज इन द क्वांटिटी इन द पिगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यदि क्वांटिटी बढ़िला देन तमर कोन हबो कलर चेंज भी से होय हबो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कोन फिजियोलॉजिकल चेंज होचे डिस्पर्शन माने जेति कि भी थिबो कोन तमर क्रोमेटोफोर सेटा डिस्ट्रीब्यूट हे के आसीबो केते आगरे स्प्रेड हे जिवो स्प्रेड हे गले कलरटा आसीबो आइदर कोन होतबो कंसंट्रेटेड है कि नंबर्स बढ़ जाउतबो नले कोन होतबो स्प्रेडिंग होतबो मॉर्फोलॉजिकल हे परथबो नले फिजियोलॉजिकल हे परथबो तो रेस्पॉन्स हम केमति कर परबा प्राइमरी कलर चेंज करके नले सेकेंडरी कलर चेंज करके पहले प्राइमरी कलर चेंज करके हमें डिटेक्ट जदी बिना माने आई छोड़ा अलग रूट रे जता हमें ता डिटेक्ट करचंती देन सेटा कलर चेंज सेटा प्राइमरी कलर चेंज होबो सेकेंडरी माने कोन जदी कोनसी कलरटा कोन होछि ना हमें जितकी कलर से शो करची तार रेशियो आ आम आखि केते ताको रिसीव कर परची ता रेशियो माने एटा कोन आसीबो ना तुमको कलर डिफरेंट माने वेराइटी आसीबो प्राइमरी लोकेशन केमति आसीबो सेकेंडरी लोकेशन केमति आसीबो कलर चेंज किंतु दीटा पई कि होय आइदर कंसंट्रेशन बढ़ी जाइतिबो नले तमरो स्प्रेडिंग हेतिबो तार बा स्प्रेड हेतिबो आउ हेल्प कोन करे ए जो क्रोमेटोफोर्स गुडा का देयर हेल्प इन प्रोटेक्शन केमति होबो जदी भाबो गोटे प्रे थिबो हैला गोटे प्रेडेटर आसुची ता प्रे खाइबा बैंक किंतु से प्रे कोन करबे ता कलर चेंज कर देबो ता कोन होबो ना प्रेडेटर डरि जिवो कि एटा मु जो प्रेटा खाउची एटा से नय एटा आउ गुटे कोन हेतिबो तो से हबे कि एटा मो पई एनिमी से पळे जाय परबो एटा होचे प्रोटेक्शन बैंक थर्मो रेगुलेशन भी से माने करंती थ्रू दिस वन पेरेंटल बिहेवियर मेटिंग तमे देखिथिबो गोटे फिश अछि स्टिकल सेल ना कोन ताको कोन से फिश टाको माने नाट एग्जैक्टली तो से फिश रा कोन मेटिंग केमिति हुए तो स्टिकल सेल ला कोन हुए ना जो मेल माने थांती थ्रू आउट द सीजन तांकर सेम नॉर्मल रहिथिबो हैला बॉडीटा किंतु जितेबेले तमरो कोन हे जिवो ना जितेबेले तमरो सीजनल ब्रीडिंग सीजन पळे आसीबो तांका बेली पोर्शनटा ऑरेंज कलर हे जिवो बेली पोर्शन ऑरेंज कलर हे गेले से स्पेसीस रो जो फूड ता थिबो हेटा ऑरेंज कलर थिबो तो फीमेल माने कोन करबे ना मिस अंडरस्टैंड करबे कि सेटा गोटे फूड भाबे कि पळे आसीबे देन आसला पर जानिबे कि एटा होछ कोन फूड में गोटे प्रकार ऑर्गेनिज्म अछि बा मेल ऑर्गेनिज्म देन मेटिंग हो तो एडी कोन होछ ना क्रोमेटोफोर प्ले करछ मेटिंग रे नेक्स्ट कोन होछ नै जो क्रोमेटोफोर काम करछि आइदर एटा न्यूरल कंट्रोल हे परिबो न हार्मोनल कंट्रोल हे परिबो ए मेटिंग केस रे तो हार्मोनल कंट्रोल कारण थ्रू आउट द माने लाइफ स्पैन हो नथिबो कारण ब्रीडिंग सीजन होतबो कारण ब्रीडिंग सीजन कोन तो हार्मोनल चेंजेस होतो ड्यू टू दैट हार्मोनल चेंजेस ए सब जिंस होतबो किबा कोनसे धर हम प्रेडेटर कहउचंदी ठी हार्मोनल चेंजेस पई हे परथबो कारण हठात कोन तमरा एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेशन होतबो किबा कोनसे गोटे ग्लैंड इफेक्ट करथबो सेति पई हार्मोन चेंज होतो जोति पई क्रोमेटोफोर माने असेंबल कर जाउथबो गोटे जगह रे हठात किना किबा स्प्रेड ही जाउथबो से जगह रे जोति पई कि से प्रोटेक्शन जोटा तुम हेल्प करछि आ आइदर किछि केस रे बोथ नॉन न्यूरल आ हार्मोनल केस भी यूज हुए तो बहुत सारा एबे केमिति हम देखिबा रेगुलेशन केमिति होछि बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स अछंती तांकर रेगुलेशन केमिति होछि रेगुलेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ क्रोमेटोफोर इन द क्रोमेटोफोर केमिति रेगुलेट होछि क्रस्टासियंस माने केमिति करंती ना लिमो तांकर लिमोस ग्लैंड रे सॉरी साइमस ग्लैंड रे माने कंट्रोल करंती जोटा कि एक्स तांकर आई स्टॉक रे गोटे एक्स ऑर्गन अछि जोटा कि तांकर कोन करे ना क्रोमेटोफोर्स को कंट्रोल करे इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स जो देखिबा ब्रेन और कॉर्पोरा कार्डियाका हेल्प कर तांकर तांकर जो रेगुलेशन करिया पई कि क्रोमेटोफोर को सेफेलोपोड्स नर्व हेल्प करे इकाइनोडर्माटा दे आर मेनली डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी बेसी लाइट अछि समय क्रोमेटोफोर अरेंजमेंट देखेबे कम लाइट अछि देखेबेनी देन वर्टिब्रेट केस रे हमर तो छाड़ो हम जे हमर नॉर्मल ह्यूमन मानकर देखिबा बहुत सारा कोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स अछि मामल मानकर एंडोक्राइन ग्लैंड्स सब अछंती कोन पिट्यूटरी ग्लैंड हला पिनियल ग्लैंड हला एड्रेनल ग्लैंड हला थायराइड ग्लैंड हला स्किन ने भी तो सेबे कोन होबना एई सब कारण एई सब जो ग्लैंड्स गुडा अछि से माने कोन कहते ना इंपैक्ट प्रकारती क्रोमेटोफोर रो कलरेशन पई की बहुत सारा मेन करके क्रोमेटोफोर इज तीन टाइप रो अछि अल्फा एमएस अल्फा बीटा एंड MSH मीन मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो एई सब हार्मोन गुडा कोन करंती ना क्रोमेटोफोर रो एक्शन पई के रेगुलेशन करंती
है क्रोमेटोफोर आम कहीं स्टडी करवा क्रोमेटोफोर स्टडी कले कौन कौन फायदा हम कहीं बहुत सारा डिजीज अच्छी जमीक आल्बिनिज्म है मेलानोमा है यहाँ सब हेल्प कर बायोमार्कर पर काम कर बायोमार्कर मैंने कौन जान तो धर गोटे आमको आम बॉडी रे को गोटे प्रोटीन को आमको कलरेशन करार अच्छी से प्रोटीन मूवमेंट देखार अच्छी आम कौन करवा ना क्रोमेटोफोर जो मेटेरियल यूज होता है डिटेक्ट करके आम तादे पार से जो ना कौन जो भी प्रोटीन आम देथिबा बायोमार्कर परिका यूज होची देन आम से क्रोमेटोफोर हेल्प रे जानि परबे कि से कुआन कुआडे मूव करची बुझिपालो नेक्स्ट होची तमरो अच्छी बायोलुमिनेसेंस बायोलुमिनेसेंस कोन bioluminescence is a simplest type of chemical reaction which helps in production of the light गोटे एमिति chemical reaction होतबो जेटा कोन कहछि ना लाइट प्रोड्यूस करछि कोडी कोडी देखिया को मिले सिलिंडरेटा फायरफ्लाइज डाइनोफ्लाजेलेट्स आउ किछिटा क्रील आउ बैक्टीरिया मानक पाखरे भी देखिया को मिले कोन पई होय जदि हम गोटे सिंपलेस्ट एग्जांपल नबा होछि फायरफ्लाई चूड़ा को जुड़ी जुड़िया पोको तो सेथिरे कोन थाय ना तांको बॉडी लुसिफेरिन्स था से माने कोन करथि ना तांको बॉडी रे एंजाइम अछि लुसिफेरेज से कोन करथि ना लुसिफेरेज जो एंजाइम अछि से कोन करे ना लुसिफेरिन को कन्वर्ट करथि ऑक्सीलुसिफेरिन को कन्वर्ट करिवे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एटीपी और ऑक्सीजन प्रेजेंस रे लुसिफेरेज कोन करबो ना लुसिफेरिन को ऑक्सीलुसिफेरिन ने कन्वर्ट करबो एंड दिस लुसिफेरेज इज ए मेटालो एंजाइम सो Mg2+ ता एठी गोटे यूज हुए मेटलटा यूज हुए तार एक्टिवेशन पाके तो एठी कोन हबा ना लुसिफेरिन टा कोड थाए ना एक्साइटेड स्टेट रे थाए से कोथरे कन्वर्ट कर दोछ लुसिफेरेज ताको ऑक्सीलुसिफेरिन होची ग्राउंड स्टेट रे तो आमे ऑलरेडी माने पढी चंती सब को केमिस्ट्री जदी कोनोसी गोटे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट रो कोठे मूव सॉरी एक्साइटेड स्टेट रो ग्राउंड स्टेट को मूव करूची तो सेई टाइम रे किछ ना किछ एनर्जी लॉस हुए तो एठी कोन होची ना से एनर्जी टा हमको लाइट रो आकार रे बाहर को आछी जोति पई कि से ऑर्गेनिज्म कोन होची ना कलर देखौची बा लाइट देखौची तो को बहुत सारा फायर प्लेयर हला सिलेंडर एटा हला डाइनोफ्लेजेलेट्स देखुथबो देखिथिबो बहुत सारा मूवी रे भी माने कोठी सी बैंक रे बा से कोन थिबो ना बहुत सारा कलर देखाउथबो पूरा सी रे पूरा लागी लागी के तो सेटा डाइनोफ्लेजेलेट्स पई के बा बायोलुमिनेसेंस कैरेक्टर पई के हला तो मोटा लास्ट मिनिट अछि कोन इलेक्ट्रो रिसेप्शन इलेक्ट्रो रिसेप्शन कौन है इलेक्ट्रो रिसेप्शन माने जेमिति कहली आम जेमिति पढ़ले कि बहुत प्रकार क्रोमेटोफोर्स अछि कलर पिगमेंट पे इलेक्ट्रो रिसेप्शन माने इट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन थिबो ता ना होची हमरो इलेक्ट्रो ऑर्गन बा इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक ऑर्गन कोन करे ना इट इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन व्हिच जनरेट स्टोर एंड रिलीज द इलेक्ट्रिसिटी तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी से माने रिलीज करते मोस्टली तुम एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स पाइबो मेनली फिश रे ही इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स माने अछंती कोन पई ना एठी कुआ जाय कि गोटे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस अछि जो फिश ता अछि तो फिश मानकर फास्ट जो लेटरल लाइन ता थिला से लेटरल लाइन ता कोन करछि ना एबे लेटरल लाइन ता कन्वर्ट हे छि माने कहबो कि जो लेटरल लाइन अछि ता काम कोन कि से बैलेंसिंग रे हेल्प करे डिटेक्ट करे कि माने केमिति कोन कोडी कोन अछि से मूवमेंट रे हेल्प करे तो बैलेंसिंग करेबो और माने से काम यूज है किंतु से जो फिश मानकर लेटरल लाइन थिला से तार मेकानिकल सेंसिटिविटी को लॉस कर देला आउ इंस्टेड ऑफ दैट वन दैट हैज डेवलप द इलेक्ट्रिक सेंसिटिविटी से कोन करथिबो ना तार मेकानिकल सेंसिटिविटी को लॉस करके इलेक्ट्रिक सेंसिटिविटी को डेवलप करथिला आ सेति में कि कोन हैला ना तो से ऑर्गेनिजम्स को जो देखिले तो से नॉर्मल जो स्ट्रक्चर थाए गोटे कोन अरेंजमेंट ऑफ रिसेप्टर सेल्स इन द सेल्स ऑफ द लेटरल लाइन जो सब रिसेप्टर अछि ताको हम देखिले इलेक्ट्रिक गोटे ऑर्गन न जति रिसेप्टर अछि मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर सेम होछि तो एठी हम गोटे एविडेंस पाइथिले कि जो ऑर्गेनिजम्स मानकर माने इलेक्ट्रिक ऑर्गन अछि से दैट हैज बीन डेवलप फ्रॉम द लेटरल लाइन किछि गोटे कारण रो कोन करछ ना ताकर मेकानिकल सेंसिटिविटी लॉस करछंती आ कोन करछ ना डेवलप करछंती इलेक्ट्रिकल सेंसिटिविटी एंड दिस इज योर this is helps in creating this electric organ electric organ कोन करे ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूछि हम कह परबे इट इज द लेटरल लाइन एंड द इलेक्ट्रिक ऑर्गन एक्ट एज होमोलोगस माने ओरिजिन सेम बट फंक्शन अलगा लेटरल लाइन तमर मेकानिकल सेंसिटिविटी करछि और इलेक्ट्रिक ऑर्गन कोन करछि तमर इलेक्ट्रिक सेंसिटिविटी करछि तो जो इलेक्ट्रिक रिसेप्टर्स रहजंती तो दी प्रकार थांती जो माछो माने अछंती किछटा थांती स्ट्रांग इलेक्ट्रिक रिसेप्टर किछटा थांती
कहते वीक इलेक्ट्रिक रिसेप्टर एठी माने एठी गोटे बॉक्स अछि ए बॉक्स देखिबो बहुत सारा फिश रो नेम देछि आ तांकर को पोर्शन ने इलेक्ट्रिक ऑर्गन अछि आ से केमिति काम करजंती आ एठी देखो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक रिसेप्टर और होछि वीक इलेक्ट्रिक रिसेप्टर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक रिसेप्टर माने मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट रे थिबो आ वीक इलेक्ट्रिक रिसेप्टर माने बहुत कम देखिबो तो तमे माने मैच करबो मोस्टली ए जो जगह रे लेटरल लाइन सिस्टम अछि से जगह रे मोस्ट ऑफ द फिश मानकर देखिबो इलेक्ट्रिक ऑर्गन अछि माने कोन से माने सेठो हमें जानछथि कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस वाइज से माने किछ ना किछ डेवलप करछथि आ जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन अछि तारा मेनली को पार्ट अछि तापर कनेक्टिव टिश्यू अछि एक्सेसरीज टिश्यू अछि ब्लड वेसल्स अछि मोटर नर्व्स अछि मोटर नर्व्स कोन पे अछि ना ए जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करछि ताको हेल्प करे फंक्शन करबारे आउ नॉर्मली जदि गोटे आमे इलेक्ट्रिक माने माने ऑर्गन्स देखुछंती तार जो सरफेस रे बहुत सारा चेंजेस हेछि माने बहुत सारा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोसाइट एक्साइटेबिलिटी हेछि जोथि पे कि से कहू छै बहुत सारा ट्रांसपोर्टर बनै छै एक्टिव और पैसिव प्रॉपर्टीज रो जोथि पे कि वेरियस टाइप रो आयंस रो मूवमेंट होछि से आयंस रो मूवमेंट पे कि इलेक्ट्रिसिटी ता तमरा प्रोड्यूस होछि देन इलेक्ट्रिक ऑर्गन दीटा पार्ट अछि कोन इलेक्ट्रिक रिसेप्टर आ होछि सपोर्टिंग सेल इलेक्ट्रिक रिसेप्टर होछि कोन इलेक्ट्रिक रिसेप्टर जेमति हम पढले मेकानिकल रिसेप्टर सेमति इलेक्ट्रिक रिसेप्टर कोन दैट हैज द परसेप्शन ऑफ लाइट सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड मेडिएट द स्पेसिफिक सेंसरी सेल से माने कोन करत ना इलेक्ट्रिक सिग्नल दियंती और गोटे सेल को एक्टिव करे दियंती ताछडा सपोर्टिंग सेल्स अछि जोडा कि एनकैप्सुलेटेड हे गछि जेमति कि सटी पढथिले सपोर्टिंग सेल्स अछि से एठी भी एनकैप्सुलेटेड बा ताको सराउंड करिके अछि इलेक्ट्रिक रिसेप्टर को आ दी प्रकार इलेक्ट्रो रिसेप्टर अच्छी टाइप देखा जदि एम्पुलरी आ होची टर्बियन एम्पुलरी माने गोटे जो जेली फिल्ड पोर्स अच्छी एम्पुलर रीजन में फिश मानकर दैट हेल्प्स इन लो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन हला जदि लो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन पर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल से होतबा सेटा होची एम्पुलरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन बा इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन आ टर्बाइन माने कोन करथांती टर्बाइन माने कोन करथांती ना हाई फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करथांती दैट इज नियर अबाउट 20 to 20,000 hertz रो स्टिमुलस को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिक ऑर्गन देथांती then what are the functions of the electric organ the main function of the electric organ is that it helps in prey hunting जति स्ट्रांग जो फिशेस मान रहले ताकर प्रे हंटिंग रे यूज हुए देन आउ कोन करि परिबो पैसिव इलेक्ट्रो लोकेशन करि परिबो हेल्प इन स्पेसिस रिकॉग्नाइजेशन एंड इंट्रास्पेसिफिक कम्युनिकेशन तो जो माने इलेक्ट्रिक ऑर्गन अछंती से माने निज निज भीतर कम्युनिकेट थ्रू दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल भी करि परंती तो लास्ट एतिकी अछि तमन देखि दबा आ कोन अछि या भितरे मेजर त एतिकी अछि स्पेसिफिकली देखिबो इलेक्ट्रिक ऑर्गन स्ट्रक्चर डिटेल टिके देखिबो आ तांकर टाइप्स टिके देखिबो हैला आ किछि डाउट अछि जदि पचार आज रो सेशन हले सारिबा हां काली जो पचार थिलो जो रेनिन ता बोथ माने एडल्ट आ फिटल रे सेम ही जिंस तार फंक्शन भी सेम ही तार के माने स्ट्रक्चर आ तार फंक्शन भी सेम ही काम करे एडल्ट आ इन द केस ऑफ फिटस माने से हेल्प इन दैट कोन Na+K+ रेगुलेशन करबो से आजिर चैप्टर रे तमर आजिर दीटा ब्लॉक रे हमर कोन फिजियोलॉजी आउ तमर कंपैरेटिव एनाटॉमी आ इकोलॉजी रे टॉलरेंस पार्टा रिसेप्टर्स डिफरेंट रिसेप्टर पार्ट्स होइला काली अछि हमर एंजाइम बायोकेमिस्ट्री आउ दिन अछि काली हम एंजाइम पढेबा आउ तापर दिन हम पढेबा अछि 5 तारिख दिन अछि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ओके कार किछ डाउट अछि আজি कारण ए जो 4टा यूनिट अछि एटा किछ ना इकोलॉजी टाइप रो एटा किछ इंटरेस्टिंग नै एटा तुमको पढि के ही लिखबार अछि तो फास्टा होची तमर फास्टा टिके भलो चैप्टर थिला जेंति कि इलेक्ट्रिक सिग्नल एटा बहुत माने इंपोर्टेंट जदि तुम कहबो एग्जाम पाई कि तुम छाड़ीबो क्वेश्चन ताले केबे भी तमे नर्वस सिस्टम एक्सक्रीशन जमा छाड़ीबोनी एक्सक्रीशन नर्वस सिस्टम आउ सर्कुलेशन नो क्वेश्चन बेसिकली आसे फिजियोलॉजी रो हैना केबे ई तीनटा चैप्टर छाड़ीबोनी फिजियोलॉजी रे oh ठीक अछि thank you for your cooperation to now we'll end our session we'll meet tomorrow at this time okay Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. thank you everyone